بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کیا ورحمۃ حال ہے اللہ آپ کے؟ وبرکاتہ۔ الحمد للہ آپ کیسی ہیں؟ ہاں الحمد للہ شکر اللہ کا. رول نمبر 42 ہے ہمارے ساتھ. ہم آج انشاءاللہ جو ہے منصرف اور غیر منصرف اسماء کی جو کیٹیگریز ہیں آپ لوگوں نے الحمدللہ پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ نے اس بارے میں ہمیں بتانا ہے کہ منصرف اسماء کیا ہوتے ہیں اور غیر منصرف اسماء کیا ہوتے ہیں اور یہ کس کیٹیگریز میں آتے ہیں. آ، آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میم، منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جو اعرابی لحاظ سے جو ہے نا تینوں جو حالتوں کو قبول کرتے ہیں، اور غیر منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جو کہ اعراب میں جیسے کثرہ کو قبول نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں ان میں اوزان ہوتے ہیں، مطلب جو جس کی وجہ سے وہ جو ہے مبنی بھی رہتے ہیں، مطلب آپ ان کی نا کی کلیئر اعرابی آواز حالت نہیں آ رہی. آپ کی ان کی آواز تھوڑی سی اعرابی حالت کلیئر نہیں ہے. ان کی اعرابی حالت نہیں بدلتی، مطلب کچھ اوزان ایسے ہوتے ہیں جیسے خلفاء اور مساجد، اس طرح کے اوزان میں ان کی جو آپ کی ان کی ابھی حالت نہیں بدلتی. صحیح طرح سے ان کو نا پہلے بتائیں کہ منصرف اسما جو ہمارے پاس ہم نے ڈسکس کر لیا. منصرف اسما وہ ہیں جو تین عرابی حالتوں میں تین شکلیں لیتے تینوں ہیں. اعرابی حالت میں تو ملتے ہیں جی، ہاں مرفوع مرفوع بھی ہوتے ہیں، منصوب اور منصوب بھی مجرور۔ ہوتے ہیں. مرفوع میں پیش ہوتا ہے اور ان پر یا مطلب دو پیش ہوتے ہیں، اور منصوب میں زبر اور دو زبر، اور مجرور میں دو زیر یا زیر، اس طرح سے۔ لیکن غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں نا وہ تینوں اعرابی حالتیں قبول نہیں کرتے۔ کچھ اسما جو ہے وہ جیسے کسرہ قبول نہیں کرتے، اور اور کچھ اور کیا نہیں کرتے؟ اسما اور کچھ ایسے تنوین ہوتے بھی ہیں قبول جن نہیں کے نا کرتے غیر ہاں منصرف اسما جو تنوین ہے. بھی، ہاں غیر تنوین قبول نہیں کرتے، صحیح، تنوین بھی قبول نہیں کرتے۔ جس طرح سے عربی میں عورت کا جو نام ہے جیسے زینب یا فاطمہ، جو یہ ہے ان کو ہم اگر منصوب یا مطلب وہ مجرور حالت میں اگر ان کو لکھیں گے تو وہ کسرہ کو قبول نہیں کریں گے، ان کو ہم فاطمہ کا ہی لکھیں گے یا زینبہ ہی لکھیں گے، وہ کسرہ قبول نہیں کریں گی اور نہ ہی ان پر تنوین آئے گی۔ جی. اور ان کی آپ کو کیٹیگریز ان کی سر نے ہمیں کیٹیگریز بھی بتائی تھی منصرف اور غیر منصرف اسما کی. جی، اس میں انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہیں اس میں سے چھ انبیاء کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء کے نام جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور جی اور فرشتوں کے نام، اور کیا کہتے ہیں عربی زبان کی عورتوں کے نام، اور الف نون والے نام جیسے عثمان، سلمان، فرحان، ہوں یہ اس طرح کے نام، اور جی. اور بھی اور میں بھول گئی۔ تائیں مربوطہ پہ اینڈ ہونے والے آدمیوں کے نام جیسے طلحہ، اسامہ. جی، خلیفہ، اس طرح کے لفظ۔ جی. اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں جو مطلب مختلف اوزان پر آتے ہیں، جیسے مساجد یا علماء، یہ اس طرح کے اوزان پہ جو الفاظ آتے جمع ہیں کے اوزان، وہ اس کو کہتے جمع ہوتے ہیں جمع کے اوزان ہے. یہ ہیں۔ جی جمع کے اوزان ہے کچھ جو جی کہ غیر منصرف ہوتے ہیں. مطلب ان کی جمع کے اوزان کا مطلب ہوتا ہے ان کی واحد نہیں ہوتی غیر منصرف، جی ان کی ہاں، صرف جمع جب ہوتی ہے وہ غیر جمع میں منصرف. آتے ٹھیک ہیں ہے. تو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں اور وہ تنوین اور کسرہ قبول نہیں کرتے، جیسے ہاں وہ کون کون سے مساجد، ہیں اوزان؟ مساجد ایک ہے مفاعل، اور فعلا، اور فعولہ، جیسے علماء، علماء کے ایک وزن ہاں پہ آنے والے، ہاں ایک ہے انبیاء کے فعولہ وزن ہے، پہ آنے ہاں والے. جی انبیاء ہے، اور یہ مساجد کے وزن پر آنے والے،
हाँ, अम्बिया मफातीह है, और मसाजिद मसाजिद जी। है हाँ, और मसातिफ, हाँ, दवाब। दवाब सही जी। हाँ, दवाब जो है ये हमारे पास है, ये कैटेगरीज हैं। आप जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर। रोल नंबर 42। आपकी आवाज़ भी बहुत स्लो आ रही थी। जी, वो रोल एक्चुअली मेरे नंबर पीछे 6। बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो मुझे थोड़ा वो भी टेंशन हो रही थी कि बहुत ज्यादा पीछे डिस्ट्रक्शन थी। माजरत बहुत मेरी तरफ से, लेकिन ये अच्छा चलें रिवीजन जी, हो गया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह जज़ाकल्लाह। खैरन कसीरा। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। जज़ाकिल्लाह। रोल नंबर 6 है हमारे साथ। रोल नंबर 6 आप बताएं। इसमें जो है हमारे पास इन्होंने बताया मुंसलिक और गैर मुंसलिक अस्मा की कैटेगरीज बताई हैं। इसमें कुछ रह गया है? मैम मैंने ये पूछना था कि जो मुज़क्कर गोलता पर खत्म होने वाले अस्मा हैं वो गैर मुंसरिफ में आते हैं। उनमें जो है मुज़क्कर अस्मा जैसे इनमें तलहा हो गया, हमजा हो गया, उसामा हो जी गया। जी जी। ये जो है ये भी गैर मुंसलिक अस्मा की कैटेगरी में आएंगे। ये होते तो इनके नाम है मुअन्नस, इनके एंड पे लफ्जी मुअन्नस होते हैं, लेकिन जो है ये आदमियों के नाम होते हैं, तो ये भी गैर मुंसलिक अस्मा की कैटेगरी में आते हैं। और एक जो अलम जो है, अस्माए अलम जो होते हैं, जो अफ़आल की कैटेगरी पे आते हैं, जो इसमें तफ़दील की कैटेगरी होती है, अफ़आल के वजन पे आते हैं। जैसे अहमद, अनवर, अख्तर और अकबर। ठीक है, ये भी नाम जो हैं ये भी गैर मुंसलिक अस्मा की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अहमद हो ठीक। गया, अकबर हो गया। ठीक है, ये जो अफ़आल के जो वजन होते हैं ना हमारे पास। मैम ये कौन कौन से जमा के हमारे औजान। हाँ, जमा के औजान है हमारे पास। उलमा का एक है, ये इस वजन पे जो आएंगे। एक अम्बिया का वजन है, इस वजन पे जो आएंगे। जितने भी प्लूरल्स जो है ना जमा के औजान, इस पे आएंगे। अम्बिया पे, उलमा पे और मसाजिद। जैसे मसाजिद के वजन पे होता है ना, मदारिस भी आता है, जी मसाजिद आता है। जैसे उलमा पे आता है, फुकरा भी आता है। ठीक है, गुरबा भी आता है उलमा के वजन पे। इसी तरह से मसाजिद और इसके साथ एक और है हमारे पास कैटेगरी, मफातीह जो होता है, वजन होता है। जैसे मसाबीह या जाबी जिसको कहते हैं, मफातीह। दवाबा भी माजिया बता रहे थे ना, कुछ दवाबा भी था। हाँ, दवाब। ठीक है, दवाब ये एक ही है इसकी। और मेरे ख्याल इस पे मैंने अभी तक नहीं कोई मेरे पास नजर में गुजरा। दवाब जो एक कैटेगरी है, ये भी जमा की कैटेगरी है। ये इन कैटेगरीज में जहाँ पे भी आपके पास जमा के वजन आएंगे, ठीक है, वाहिद वाले, इनके जो वाहिद भी होंगे वो भी गैर मुंसरिफ अस्मा में नहीं आएंगे। इनके वाहिद जो है वो मुंसरिफ अस्मा में होंगे, लेकिन जो इनके जमा होंगे वो गैर मुंसरिफ में आएंगे। और एक रोल नंबर 6 आप थोड़ा सा हमारी हेल्प करें, ये बताएं कि अगर ये गैर मुंसलिक अस्मा है, आपने इनकी कैटेगरीज जो पढ़ी हैं, इन एक तो कुछ तो है ऐसे वजन है जिनमें हमारे पास अस्माए अलम आ जाते हैं। ठीक है, अस्माए जैसे जी पैगंबरों के नाम आ जाते हैं, मुल्कों के नाम आ जाते हैं, या फिर औरतों के नाम आ जाते हैं, अरबी औरतों के। ये हमारे पास जो है अलम की कैटेगरी आ जाती है, मतलब मार्फा की कैटेगरी है। ठीक है, और इसके अलावा जी। जब ये देखिए जैसे आपने जो जमा के औजान है, ये सारे हमारे पास हम नकरा कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, नकरा की कैटेगरीज में आते हैं। तो अब इनमें वैसे तो हम ये तीन इराबी हालतों में दो ही लेते हैं। ठीक है, दो हरकत लेते हैं, मतलब हालत रफ में एक दम्मा लेते हैं, और हालत नसब और जर में एक फतहा लेते हैं, एक एक फतहा लेते हैं, जर नहीं लेते। लेकिन किन हालतों में इनके ऊपर जर भी आ जाती है, वो क्या हालत होती है? मैम एक तो अगर इनसे पहले अलिफ लाम दाखिल हो जाए, हम्म और दूसरा ये है कि अगर इनसे पहले हरफ जर आ जाए। हर्फ जर नहीं है। एक मैंने हरफ बताई जर। थी आप लोगों को कैटेगरी। आप लोग किसको याद है? मैंने एक और बताई थी, किसी को याद है? क्या चीज? मुजाफ में बने, हाँ, जब ये वाली मुजाफ नहीं कैटेगरी बनेगा। थी। जी। जी जी। अच्छा।
ये कैटेगरी है जब वो मुजाफ बनते हैं। जी। ठीक है मैम। मुजाफ बनने की सूरत में भी अगर उनसे पहले हरफ जर होगा तो फिर ही आएगा, क्योंकि मुजाफ इले मजरूर होता है। मुजाफ के हालत जर में जाने की कंडीशन यही है ना कि उससे पहले कोई हरफ जर हो। ठीक है नहीं, मुजाफ इलैही की जो उसमें हरफे मैम। अ, मैम ये नहीं मुजाफ जरा इलैही से असासा, पहले एग्जाम्पल से समझा दें, जरा कोई एग्जाम्पल लिख के। असासा ये एक्चुअली ना कंफ्यूज हो रही हैं, ये समझ रही हैं कि शायद मजाफ अलह की हालत होगी। एक्चुअली जब नहीं मजाफ नहीं, की मुजाफ हालत होगी इलैही। गैर मुनसरिफ की, तो क्योंकि मजाफ अब तो हमारे पास रफा नसब जर तीनों कंडीशन में आ सकता है ना, हम मजाफ अलह मैम वाली मेरी बात नहीं बात कर रहे। समझ रही हूँ कि तीनों कंडीशन में आ सकता है। मुजाफ जो है अगर वो फाइल बन रहा है तो फिर वो मरफू आ सकता है, अगर वो बन रहा है मफूल बन रहा है तो वो मंसूब आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो मजरूर मुजाफ कब आएगा, मेरा ये सवाल था कि मुजाफ कब मजरूर होता है। अच्छा, ये देखें अभी एक तो कैटेगरी जब हमारे पास अल दाहिल हो जाए इनके ऊपर, इन अस्मा के ऊपर, जी जो नकरा कैटेगरीज के ऊपर है, तब ये हालत जर कबूल कर लेते हैं नहीं जो असासा, गैर मुस्लिम फसलों पे। असासा ये जी एक्चुअली ना कंफ्यूज इस बात पे हो रही हैं कि उनको ये लग रहा है कि ये जो मजाफ होगा ना ये हालते जर में होगा। जो आपने बोला ना नहीं। अभी के तीनों सूरतें ले सकता है, हम्म। तो वो इस सूरत में परेशान हो रही है कि ये जर किस हालत में आएगा। अभी अभी जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही क्लैरिटी होगी कि जो मजाफ अगर मसाजिदा है फॉर एग्जांपल, तो वो अगर मजाक की फॉर्म में है तो वो तीनों हालतों में यानी रफा में वो पेश लेगा, जो है नसब में वो जबर लेगा, और मजरूर हालत में वो जेर लेगा। बस अभी वाला क्वेश्चन तो आपका यही है ना। अब वो जी जी। आगे किस वजह से मजाक में हालत जर में आएगा वो तो बाद की बात है, वो भी हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, उसको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है अभी। दोबारा सवाल दोहरा जी। दीजिएगा प्लीज, क्या अच्छा, पूछा क्या था? यहाँ पे इसी के है कि गैर मुंसरिफ अस्मा कब जेर कबूल कर लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा गैर मुंसरिफ अस्मा जो है वो कसरा नहीं लेते, मतलब वो सिर्फ हालत नसब और जर में जबर के साथ आते हैं, एक जबर के साथ, ठीक है, और तनवीन भी नहीं लेते। लेकिन तनवीन तो ये कभी भी नहीं लेते, किसी हालत में नहीं लेते, लेकिन ये जर कबूल कर लेते हैं दो सूरतों में। एक तो जब इन पे अल दाखिल हो जाए तो फिर ये कसरा ले लेते हैं, जैसे अल मसाजिद, ठीक है, अल मफाती, ये इनके ऊपर अल लग गया तो ये कसरा ले लेंगे। और नकरा कैटेगरीज पे ही अल दाखिल होता है, मार्फा पे तो होता ही नहीं है, इसलिए नकरा इसमें आ जाती है सारी कैटेगरीज। और दूसरा जब ये मुजाफ होते हैं, ठीक है, जब ये मुजाफ की सूरत में आते हैं तो फिर भी ये कसरा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मुजाफ इलैही तो ऑलरेडी जो है ना वो मजरूर हो, लेकिन मुजाफ इलैही पे या आ जाएंगे ना तो फिर नहीं लेंगे, ये मुजाफ में लेंगे, ठीक है, मुजाफ पे आएंगे तो फिर लेंगे टीचर हालते जार। टीचर आपने ये भी बताया था कि जब ये मुज़ाफ़ इलल मारफा होते हैं। जी जी, मुजाफ इलैहि मार्फा मतलब वही है ना, मुजाफ होते हैं जब ना, मुजाफ हो गया ना, मार्फा नाम भी इनके मुजाफ हो गए ना, मुजाफ की जगह पे आ गए हैं। आपके पास एक मुरकबे इजाफी है, मुरकबे इजाफी में ये मुजाफ की जगह पे आ गया, अगर आपके पास कोई भी इसम, तो फिर ये जो है ले लेंगे, ठीक है, ये कसरा ले लेंगे। मैम ये जैसे बात समझ एक में नहीं आ रही, जैसे किसी एग्जाम्पल तो नोट कर यहाँ पर जरा लिख के जैसे समझा देती। जैसे है सल्लैतु फी मसाजिदिल मदीना, कि मैंने नमाज पढ़ी शहर की मस्जिद मसाजिद में, यानी कि शहर की किसी भी मसाजिद में नमाज, ज्यादा सी मसाजिद है उनमें हो गया। तो मैम वो फिर उसके जर में जाने की वजह तो उससे पहले हरफे जर है ना, फी मसाजिदिल मदीना। अच्छा, ये अभी हो, लेकिन उन्होंने ना अभी जो हम सिर्फ मुजाफ पे देखते हैं, ठीक है, हमारे पास है ना मुजाफ की कैटेगरी है कि मुजाफ पे लेंगे, ठीक है। अभी ये फी की वजह से आया है या फी उसने किस अफेक्ट हुआ है, तो मे भी ना भी फी आए या हल्के जाना ना भी आए तो फिर भी लेगा, ठीक है। आप ये इस तरह से याद रख लें। अभी फिलहाल तो इनके ज्यादातर इनके साथ आ रहे हैं हरूफे जारा, लेकिन आपने इनको ऐसे याद रखना है, हरूफे जारा आए या ना आए, आपने मुजाफ पे आ गए जब ये तो कसरा ले लेंगे, ठीक है। अभी तो इसमें जो है ना देखिए ज्यादातर में होते हैं हरूफे जारा दाखिल होते हैं, जैसे इसमें जलस्तु फिल मजालिस जी जो है,
ان کے حرف جارہ بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ یہ زیادہ اس کو اگر فوکس کریں نا تو مضاف پہ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ مضاف کی جگہ پہ جب یہ آئیں گے تو پھر یہ کسرہ بھی لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ اب یہاں پہ منصرف اور غیر منصرف اسما کی آپ کے پاس ساری کیٹیگریز آ گئی، لیکن جب آپ نے یہ ہم نے جو ہمارا ٹیسٹ بھی آئے گا ان کی اپلیکیشنز ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی کوشچن محسوس کہ آپ منصرف اور غیر منصرف اسما کی کیٹیگریز بنائیں، بس آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کس کس حالتوں میں کہاں کہاں یہ دمہ اور کہاں فتحہ اور کہاں یہ کسرہ بھی لے لیتے ہیں، آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب منصرف اور غیر منصرف اسما کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں مرکبات ناقصہ۔ سب سے پہلے جو مرکب ہے وہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کے بارے میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے، اس کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے مرکب توصیفی کے اجزاء، شنیلا بلائیں۔ جی میم 72 رول نمبر آپ آ جائیے۔ رول نمبر 7۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ مرکب توصیفی ہے ہمارے، ہم نے اس کے بارے میں جاننا ہے، آپ بتائیں کہ مرکب توصیفی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے اس کا اجزاء ہوتے ہیں، کیا فارمیشن ہوتی ہے۔ مرکب توصیفی میں دو اجزاء ہوتے ہیں، موصوف اور صفت۔ موصوف اور صفت چاروں اعتبار سے ایک دوسرے کی مطابقت رکھتے ہیں۔ ہاں، چاروں اعتبارات سے ایک دوسرے کے مطابقت رکھتے ہیں، اور اگر اردو میں ان کو کریں تو پھر کیا آتا ہے، پہلے صفت آتی ہے اور پھر موصوف آتا ہے، لیکن عربی میں پہلے موصوف آتا ہے اور پہلے پھر صفت آتی پھر صفت آتی ہے۔ جی ہے ان کا ترجمہ کرتے وقت نا۔ تو اب اس میں جو ہے آپ مجھے کوئی بھی مرکب توصیفی بتائیں۔ لمبا لڑکا، لمبا لڑکا ہو گیا، یہ ہمارے پاس ہو گیا لمبا لڑکا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو عربی کریں ولدن اس کی۔ الولد ولدن، طویل طویل۔ الولد، ٹھیک ہے، الولد، الولد طویل، ٹھیک ہے، تو الولد طویل جی آپ نے کیوں ہٹایا؟ ولد طویل، ولد مطابقت نہیں ہوگی، الف لام لگا دی غلط ہوگی۔ نہیں مطابقت نہیں، اور کچھ بتائے نا آپ نے، پہلے کہا نا ولدن طویل، آپ نے پھر بعد میں کہا الولد طویل، پھر ایسے اب اس کا بتائیں، اس کی کیا تھا ریزن اس کی، الولد آگے کیا لکھوں؟ الطویل۔ الطویل، ٹھیک ہے، اب میں نے لکھ لیا۔ ہاں، اب بتائیں اگر اس کو ایسے ہی لکھا جائے تو پھر کیا ڈفرنس ہوگا الولدن ولدن طویل میں، ٹھیک ہے، یہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ اوپر معرفہ بن گیا، نیچے نکرہ ہے۔ ہاں، اوپر معرفہ ہے نیچے نکلا ہے، اور جو ترجمہ ہے اس میں کیا آئے گا؟ لمبا لڑکا ہی آئے گا ساتھ۔ جی، اب یہاں پہ اگر یعنی کہ یہاں پہ ترجمے میں آئے گا کوئی لمبا لڑکا یا ایک لمبا لڑکا، ٹھیک ہے، ترجمے میں یہ جی ڈفرنس آئے گا کہ کوئی یا ایک ہی آ جائے گا تو پھر ہمارے پاس نکرہ کیٹیگری میں آ جائے گا، پھر ہم اس کا ترجمہ طویل ولد طویل سے کریں گے، ٹھیک ہے، اور الولد طویل یہ ہمارے پاس مرکب اضافی کی ہوگی، اس میں یہ اس کو چاروں اعتبارات سے بھی ڈسکس کر دیں، یہ کیا الولد کیا ہے اور طویل کیا ہے، جنس الولد ان کی عدد، واحد ہے، ہاں معرفہ ہے، یہ واحد بھی، ہے، ہوں مذکر ہے، اور ہوں دونوں یہاں پہ موصوف بھی مذکر ہے، اس کی صفت بھی مذکر ہے، یہاں پہ معرفہ ہے، الولد الطویل بھی معرفہ ہے،
जी। ٹھیک ہے، اعرابی حالت بھی دونوں کی ایک جیسی، الولد ہے اور یہ بھی الطویل ہے، یہ چاروں اعتبارات سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، جی جنس بھی ان کی ایک جیسی ہے، دونوں مذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے، تھوڑا سا ان کو تھوڑا ٹائم دیں گے، اب نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کو آپ بتائیں اس کو کیا اجزاء ہیں اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ پھر شاعری کے بھی دو اجزاء ہیں، اشارہ اور مشارون علیہ۔ اشارہ اور مشار علیہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرکب اشاری آپ ہمیں بتائیں۔ حاضل کتاب، حاضل کتاب، کتاب، یہ مرکب اشاری جو ہے اس کا اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مشارون علیہ سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، مرکب توصیفی کا رہ گیا، تو مرکب توصیفی کا اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ موصوف سے پتہ چلتا ہے، صرف تو موصوف کے تابع ہاں ہوتی ہے ویسے۔ ہاں، موصوف جو ہے اس کا جو بھی اعراب ہوگا صرف اس کے تابع ہوگی، ہم وہی اعراب جو ہے ہم صفت کو بھی دیں گے۔ اب جی مشار علیہ میں اشارہ ہے اور مشار علیہ، اس میں حاضہ جو ہے یہ اشارہ ہے، مشار علیہ کتاب ہے، حاضل کتاب۔ تو اگر میں اس کو حاضہ کتاب بنا دوں، حاضہ کتاب بولوں تو پھر یہ بھی مرکب اشاری ہے۔ رول نمبر مشارون، 72۔ جی ساتھ یہ جو مشارون، میں نے دوسرے مشار حاضل کتاب اور حاضہ کتاب۔ یہ بتائیں کیا ڈفرنس ہے ان دونوں میں؟ یہ دونوں، یہ مرکب اشاری ہے اور یہ بھی مرکب اشاری ہے، یا پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ ساتھ یہ مرفع ہو گیا، یہ نکرہ ہو جائے گا۔ یہ ڈفرنس ہے ان دونوں میں، ان دونوں میں جو ڈفرنس ہے وہ رول نمبر آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ حاضل کتابو جو ہے ایک منٹ، جو ہے وہ مرکب ہے، اور حاضہ کتابن جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ ہاں، حاضہ کتابن جو ہے اس میں دیکھیں، اب حاضل کتابوں کو جو ہے نا آپ ڈیفائن کریں، کیسے کریں گے؟ اس میں کیوں یہ مرکب کہہ رہے ہیں اور کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ حاضل کیونکہ کتابوں میں حاضہ کیا ہے اشارہ اور الکتاب، مشارون علیہ۔ اور ان میں اشارہ اور مشار علیہ میں ہمارے پاس کمپیٹیبلٹی ہے چاروں پہلوؤں سے۔ جی جی، جنس، ہاں عدد بس اس میں اور اعراب اور وسعت کے حساب سے دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہے، اور حاضہ کتابوں میں جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی وسعت کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ حاضہ اس میں معرفہ ہو گیا اور کتابوں جو ہے وہ نکرہ ہے، تو حاضہ مبتدا ہو گیا اور کتابوں جو ہے وہ خبر ہو گئی۔ بارک اللہ فیک، یہاں بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہاں پہ کمپیٹیبلٹی اوپر حاضل کتابوں میں جو ہے کمپیٹیبلٹی ہے، یہ مرکب اشاری کہلائے گا، اور حاضہ کتابن اس میں وسعت کے اعتبار سے کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ حاضہ جو ہے وہ معرفہ ہے، کتابن نکرہ ہے، اور یہ مرکب تام بن جاتا ہے ہمارا حاضہ کتابن، ٹھیک ہے۔ اور ان میں جو ہے حاضہ جو اشارہ ہے، جو ہمارے پاس اسماء اشارہ ہیں، ان کا اعراب کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ آپ بتا رہی تھی نا؟ مشارون علیہ سے نہیں، وہاں ان کا اعراب، لیکن حاضہ کا خود ان کا اعراب ہمیں کیسے ہم کریں گے؟ مطلب یہ تو اب الکتاب معرفہ ہے، ہم نے کہا معرفہ تو حاضہ بھی ہے، یہ حالت رفع میں ہے الکتاب، تو ہم نے کہا حاضہ بھی حالت رفع میں ہے، کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ اس کو ہم نے حاضہ جو ہے نا، حالانکہ اس کے اینڈ میں تو زبر آ رہی ہے حاضہ، اگر اس کو دیا جائے۔ اشارہ تو مبنی ہوتا ہے نا، وہ پھر سب سیم ہی ہاں، ہوگا۔ مبنی ہوتا ہے، یہ مبنی ہوتے ہیں، اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں، وہ اپنی حالت چینج نہیں کرتے، تو اس لیے جو ہے اس کا ہمیں جو بھی اعراب ہمارے پاس مشار علیہ کا ہوگا، لیکن ہمارے جو بھی اس میں اشارہ کے بعد جو اگلا اسم ہوگا
وہ لازمن جو ہے نا وہ ال کے ساتھ ہونا چاہیے اگر وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، نکرہ اسم ہوگا تو وہ ال کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمارا مرکب اشاری بنے گا. اگر وہ ال کے ساتھ نہیں ہے یا تو پھر وہ ویسے معرفہ ہوگا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا کیونکہ حاضہ بھی معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہوگا. لیکن نکرہ کی کیٹیگری میں ہمارے پاس وہ ال کے ساتھ لازمن ہونا چاہیے اشارہ کے بعد. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے مرکب اشاری بھی ہو گیا. اب رہ گیا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، مرکب اضافی جو ہے نا اس کا بتا دیں کتنے اجزاء ہیں اور اس کو کیسے کریں گے. آپ جو بتا رہی تھی آپ کنٹینیو کریں. مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ سے بنتا ہے. ہاں، مضاف اور مضاف الیہ سے بنتا ہے. اچھا، دو اجزاء اس کے ہو گئے. اور اب اس میں نا ہمیں کو مرکب اضافی بتائیں پھر ہم اس کو کرتے ہیں. مضاف، اس میں مضاف جو ہے وہ تنوین نہیں لے گا اور الف لام نہیں لے گا. ہاں، اور اس کو ایک مضاف ایک ہمیں مرکب اضافی بتائیں نا تاکہ ہم اس کو کریں. آپ بتائیں کہ مرکب اضافی جیسے جی، کتاب احمد یا کوئی بھی کتاب کتاب اللہ ہی، الولد جو کتاب کتاب اللہ. اللہ. کتاب اللہ. چلو کتاب اللہ ہی ہم نے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی. یہ ہم نے کیسے پتا کیا یہ مرکب اضافی کی کنسپشن ہے. کیونکہ مضاف پہ تنوین نہیں ہے اور الف لام نہیں ہے، اور اس کے جو ہاں مضاف الیہ ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے اور مجرور ہے. ہاں، اب سب سے پہلے جو ہے نا جب ہم نے مرکب اضافی کی پہچان کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے پہلے اسم کو دیکھنا ہے کیونکہ مرکب اضافی میں دونوں جو ہوتے ہیں وہ اسماء ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مضاف ہی اسم ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے والے اسم کو دیکھیں اگر اس کے اوپر نہ تو ال ہے نہ تنوین ہے تو پھر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ ہم اس کو مضاف میں کنسیڈر کریں گے لیکن کنفرم نہیں کریں گے. کنفرم کریں گے ہم نیکسٹ والا اسم دیکھ کے. ٹھیک ہے، اگلے والا اسم اگر حالت جو ہے جر میں ہے تو پھر ہمارا کنفرم ہو جائے گا کہ اگلے والا اسم حالت جر میں ہے تو یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بن رہی ہے. اور مضاف الیہ میں کوئی کمپیٹیبلٹی آپ دیکھتی ہیں اسم کے چاروں پہلوؤں میں ہے. نہیں، چاروں پہلو میں تو نہیں ہے لیکن اعراب میں ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی ہے وہ اس کا جو ہے نا ہو سکتی ہے نہیں مطلب ہوتی نہیں ہے. ایک تو جو ہمارا جو اس کا مرکب اضافی کا اعراب ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے. مرکب اضافی کا اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے. مضاف سے. مضاف سے. ہاں مضاف سے. ہاں مضاف سے پتہ چلتا ہے ہمیں مرکب اضافی کا اعراب جو ہوتا ہے کیونکہ مضاف الیہ جو ہے نا وہ تو حالت جر میں ہی ہمیشہ ہوتا ہے. اب اس میں ہے نا یہ اب جو مضاف ہوتا ہے نا یہ اپنے دیکھیں گے جملے میں کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے. یہ پلیز اپنا مائک جو ہے نا آف رکھیں تاکہ آوازیں اور نہ ڈسٹرب کریں. اب یہ جو جملے میں جب استعمال ہوگا پھر ہمیں اس کے مضاف کا جو پھر اعراب جو ہے نا وہ زیر زبر پیش کچھ بھی یہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں اگر یہ زیر لے رہا ہے تو پھر وہ آ جاتی ہے وہ کسی اور وجہ سے کمپیٹیبلٹی آتی ہے. مطلب وہاں پہ پہلے ہو سکتا ہے حرف جر ہو اس کی وجہ سے اس نے کسرہ لیا ہے یا پھر کسی اور وجہ سے یہاں پہ جو مضاف ہے اس پہ کسرہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ بس کنڈیشنز یہی ہے کہ مضاف پہ ال اور تنوین نہیں ہوگی اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا اور دوسرا مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کی صورت میں مضاف پر سے نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. مثنیٰ کا اور جمع مذکر سالم آپ نے دیکھا ان کے اینڈ پہ نون آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کتابانی. ٹھیک ہے، بابانی اور یا بابینی کتابینی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو اگر یہ مثنیٰ کے علاوہ جمع کی بات کریں تو اس میں جو ہے اگر آ جاتا ہے مسلمونہ یا مسلمینہ ان کے اینڈ والے جو ہے نا وہ پھر نون ڈراپ ہو جاتے ہیں اور وہ جو لاسٹ والی جو یا پھر واؤ وہ رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں تک پھر ہمارا ہو جاتا ہے. جیسے
अब इसको हम देखते हैं, जैसे मुस्लिमूना अल मदीना, मुस्लिमू अल मदीना। ना अल ये जो मैंने ऐसे इसको बनाया, ठीक है। अब ने आपने मैंने देखा अल मुस्लिमूना अल मदीना थी, मैंने एक मुरक्कब लिखा, मतलब मुफरद प्लस मुफरद जो है ये दो अल्फाज मिलके मुरक्कब बना देते हैं। अब ये जो है ना, आपको अभी ये मुरक्कब जो है, मैं कहती हूँ आप इसको मुरक्कब इजाफी में कंस्ट्रक्ट करें। आप इसमें क्या चेंजिंग लेके आएंगे? अल मुस्लिमूना का नून हटा दूंगी और अल बस भी नून ही हटा दूंगी, हटाना है? और अल अलिफ लाम हाँ भी हट जाएगा इसका। हाँ, तो फिर क्या तो बन जाएगा? मुस्लिमुल मुस्लिमू मुस्लिमुल मदीना। अब मैंने मदीना के ऊपर पेश डाली थी, क्या आएगा फिर? मदीनती। हाँ, मुस्लिमुल मदीना थी। ये जो है ये हमारी, अब ये देखें, ये एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी, जो है दो मुफरत थे अल्फाज, हमने इनसे कहा हमने मरतबा इजाफी कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमने इसको मुस्लिमुल मदीनाती बना दिया। अगर देखें दो अल्फाज आपके पास आ जाते हैं, आपको कहा जाता है इसे मरकबे, इसको मरकबे तौसीफी में कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि मैंने मरकबे तौसीफी कैसे बनाना है। अगर मैं मरकबे इजाफी बना रही हूँ तो मुझे मरकबे इजाफी कैसे बनाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मरकबे जारी ये रह गया बस एक मरकब। अच्छा, मरकबे इजाफी है, मरकबे तौसीफी है, मरकबे इशारी। अब मुझे बताएं जुमले में किस किस हैसियत से आ सकते हैं? हमारे पास जुमला इस्मिया है, ठीक है। जुमला इस्मिया के आपको पता है दो अज्जा है, मुब्तदा और खबर। अब हमारे पास मुरकबात में अगर मरकबे इजाफी जो है वो जुमले में किस किस हैसियत से आ सकता है? मुरकबे दोनों ऐसे इजाफी से आ जुमले में सकते हैं, किस हैसियत से और मुब्तदा खबर भी में, और खबर ठीक है। भी। और इस जब मुब्तदा और खबर दोनों हालतों में ये आ सकता है, तो फिर इसकी हमारे पास क्या होगी राबी हालत? मरफू। हाँ, दोनों फिर मरफू हालत में आएंगे, मुब्तदा भी और खबर भी। एज मरकबे इजाफी भी होगा, मरकबे इजाफी का मुजाफ जो होगा वो हमें बताएगा हमने इनको किस हालत में लिया। और जो है मरकबे तौसीफी, वो भी दोनों में आ सकता है, हाँ मुब्तदा पे भी आ सकता है, और मुब्तदा और खबर जो है और खबर पे भी खबर आ में सकता है। भी। लेकिन क्या डिफरेंस होगा? मुब्तदा पे आएगा तो क्या फर्क होगा, खबर में आएगा तो क्या डिफरेंस होगा मरकबे तौसीफी में? मुब्तदा में होगा तो वो मुआरफा की शक्ल में होगा, और खबर में नकरा। खबर और मरकबे इशारी, मुरकब इशारी जो है वो मुब्तदा बन सकता है, क्योंकि उसमें मुआरफा आता है इशारा। हाँ वो सिर्फ मुब्तदा बन सकता है, वो नकरा, वो खबर क्यों नहीं बन सकता मरकबे इशारी? क्योंकि खबर नकरा होती है ना, तो वो क्योंकि मुआरफा होता है उसमें इशारा, इसलिए वो नकरा की तरफ कैसे जाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें हमारे पास जो इशारा होता है वो, उसकी जो कंस्ट्रक्शन इसकी बनती है मरकबे इशारे की, वो हमेशा मार्फा में बनती है। तो इसलिए जो है हम उसको एज अ खबर नहीं लेके आते, उसको एज अ मुब्तदा ही लेके आते हैं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो आपको पता है हर जगह पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे मुब्तदा भी मार्फा हो और खबर भी मार्फा हो, तो फिर इसमें ये होता है चांस कि ये आ सकते हैं। सूरत में वो 1% सिर्फ होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मुरकबे जारी था। रोल नंबर आप नेक्स्ट बुलाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट 27 आप आ जाए, और जिनकी रोल नंबर जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख दें, और वरना फिर उनका ना कॉल नहीं किया जाएगा उन्हें। मुरकबे जारी हमारे पास है, ठीक है। एक मुरकब है मुरकबे जारी जो फोर्थ वाला है, लास्ट मुरकब। इसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो करेंगे। मुरकबे जारी बताएं। रोल नंबर 27 नहीं है मेरा ख्याल है। आप रोल नंबर 81 81 को को बुला लिख, लें। 81 हाँ, आप आ जाए। 81 को। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, रहमतुल्लाहि यहाँ पे वबरकातुहू सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुरकबे जारी में आप बताएं हमारे पास कौन से अज्जा होते हैं? और जी सिस्टर, दो दो अज्जा होते हैं।
حرف جر اور مجرور اسم، حرف جر اور مجرور اسم حرف جر اور نیکسٹ جو اور اسم ہوتا ہے مجرور وہ اسم اسم مجرور ہوتا ہے. مرکب جاری بنے گا. تو یہ دونوں مل کے مرکب جاری بناتے ہیں. حروف جارہ جو ہے، حروف جر یا حروف جارہ دونوں ان کو کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف جارہ بھی کہتے ہیں، حروف جر بھی کہتے جی ہیں. تو جی حروف جی. جارہ کی ڈیفینیشن بتائیں، یہ کیا ہوتے ہیں حروف جارہ؟ یہ مرکب جاری ہے، یہ متعلق خبر ایسا آ سکتا ہے سسٹر. یہ متعلق خبر اور نہیں وہ شبہ جملہ خبر. نہیں وہ تو ہو گیا مرکب ہوں جاری، وہ تو ہے. لیکن ابھی میں پوچھ رہی ہوں حروف جارہ ہوتے کیا ہے؟ حروف جارہ کو کبھی بھی 17 سسٹر ہو قرآن مجید میں آپ کو 11 حروف یہ کرتے ہیں. من، بی، لی، ہاں یہ سب آپ کو حروف جارہ جی کے حروف. ہاں، الا، الی. تو الا، یہ حروف جارہ جو ہے نا، یہ اچھا یہ بھی ہمارے پاس کلمہ کی ایک قسم ہے. تو اس کی جی پوری اس کو جب آپ سے ڈیفینیشن پوچھی جائے آپ ایسے بتائیں کہ حروف جارہ کلمہ کی وہ قسم ہے جو اکیلے اپنا معنی نہیں مکمل کرتے، وہ اس کو اکیلا اپنے پورا معنی نہیں معنی دیتی، مکمل کرنے کے لیے. اسم اور فعل کے ساتھ مل کر مانا دیتا ہے. ہاں معنی مکمل ہوتے ہیں. تو اس کے اپنے کوئی یعنی کہ آپ نہیں معنی دیتے، اس کے ساتھ یا تو اسم کے ساتھ مل کے یا یا فعل کے ساتھ مل کے اپنے معنی مکمل کرتے ہیں. معنی نہیں دیتی ہے. جی سسٹر. اب اس میں جو ہے جو مرکب جاری ہے ہمارے پاس، اس میں جو ہے اسم مجرور جو ہے وہ جو اسم مجرور سے کیا مراد ہے؟ اسم جی سمجھی نہیں سسٹر آپ کا وہ کوسٹین میں. یعنی کہ حروف جارہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حرف جر کے وجہ سے، حرف ہاں حرف جر جار، کی وجہ. جی حروف جارہ کی وجہ سے اس کو مجرور کہا جاتا ہے. تو یہ مرکب جی جو جاری کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے یا معرفہ ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سسٹر نکرہ بھی آ سکتا، معرفہ بھی آ سکتا سسٹر. مجرور اسم اس میں مجرور تو وہ نکرہ اور معرفہ دونوں طریقے سے ویسے ہم جو ہے نا معرفہ فی استعمال کرتے ہیں المسجدی، حروف جارہ فی کے بعد. المسجدی، فی نہیں آپ میں المسجدی. یہ ہاں وہ ٹھیک ہے آپ کا. میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے پاس جملے میں اگر ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے جی پاس کہاں کس جگہ پہ آتے ہیں؟ نہیں، وہ مبتدا بھی نہیں بنتا، خبر بھی نہیں بنتی، وہ متعلق بن جی سکتا ہے سسٹر. ہاں متعلق خبر بنتا ہے یا پھر یا شبو قائم جملہ، مقام خبر بن سکتا قائم ہے. مقام یا شبو جملہ. ہاں ہاں شبو جملہ یا بن سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس مرکب جاری ہے جو کہ نہ تو مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے، کیونکہ نہ تو یہ جی معرفہ ہوتا ہے نہ نکرہ ہوتا ہے. اس کو نہ کسی نکرہ کیٹیگری میں نہیں لے کے آتے، نہیں یہ لگتا. جی ان کو متعلق کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تھا. اچھا اب جو ہے اس کے بارے میں کوئی کسی ہمارے پاس چاروں مرکبات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہے کسی کا بھی؟ چلے الحمدللہ سب کا. اب جو ہم پریکٹیکل ایگزامپل کریں گے تو اس میں رول نمبر ہمارے پاس ہے 81. آپ پہلا جو سینٹینس ہے اس کا مجھے بتائیں اور جلدی سے تیز کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جی فرسٹ سسٹر. سینٹینس. خوبصورت گھڑی میز پر ہے. گھڑی ساعتو نے کیا سسٹر؟ اچھا الساعتو، الساعتو الجمیلو، الساعتو الجمیلو علی المکتبی. الساعتو الجمیلو علی المکتبی. الجمیلات علی الجمیلتو المکتبی. علی المکتبی. اچھا سب سے پہلے جو ہے نا سینٹینس شروع کرنے سے پہلے یہ بتائیں یہ سینٹینس جو ہے نا جملہ اسمیہ تھا یا جملہ فعلیہ تھا، اور کیسے آپ کو پتا یہ چلا یہ کون سا سینٹینس ہے؟ جی جملہ اسمیہ سسٹر، جملہ اسمیہ. کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوا ہے اس کے لیے. ہاں اس میں وہ تو دیکھیں جملہ فعلیہ کو بھی آپ کریں گے نا، خوبصورت لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے یا پڑھتا ہے، وہ اب جملہ فعلیہ بن گیا، وہ تو اسم سے شروع ہو رہا ہے. وہ بھی جی اگر ہم اس طرح سے کریں نا تو وہ بھی تو ویسے ہی کیونکہ بن رہا ہے نا اس لیے. الف لام ہے سسٹر. اللہ. نہیں یہ بھی نہیں صحیح ڈیفینیشن. مطلب آپ اس کو پراپر بتائیں نا، آپ کو کیسے پتا چلا یہ جملہ اسمیہ ہے؟ خوبصورت گھڑی میز پر ہے.
आप उर्दू में इसको क्योंकि देख लें, आपको कैसे पता? इसमें एक मुब्तदा है खूबसूरत घड़ी मुब्तदा और खबर है मेज। ये भी ऐसे ठीक है। खबर, लेकिन ये अभी बेस नहीं है, कैसे पता चला आपको ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है? मैम इसमें कोई भी फेल नहीं हो रहा, कोई भी फेल वाक्य नहीं इसमें हो जो सही है रहा। ना, है। अच्छा फेल वाकया नहीं हुआ हुआ इसमें, मतलब कोई काम जी, का तज़किरा नहीं है काम का इसमें। हुआ है नहीं, काम का ये हाँ, नहीं है जमाने का, हम्म, यानी कि जमाना नहीं इसमें कोई भी पाया गया ना। आपने, हम्म, हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि उसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। ठीक जी है, जुमला हम्म, इसमिया में भी यही है। देखिए, एक घड़ी खूबसूरत घड़ी मेज पर है, या फिर कहें हम्म, हमने किसी ने खूबसूरत घड़ी मेज पर रख दी थी, कल रखी थी, या फिर वो रखेगा, इस तरह के अगर जमाना अगर उसमें चला जाएगा, तो फिर हम जी कहेंगे वो जी जुमला फेलिया बन गया है। जी अभी ओके। जब इसे देखिए, इसमें कोई आपको जमाना नहीं मिल रहा, कोई काम का तज़किरा नहीं हो हाँ रहा, तो फिर जी इसलिए जी यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया ये जुमला इसमिया है। सबसे पहले ओ, ये जुमला हम जो कर रहे हैं, ये जुमला इसमिया है या जुमला फेलिया है। ठीक है। फेलिया या अगर मैं ऐसे कहूं कि खूबसूरत घड़ी कल मेज पर थी, तो तब भी ये जुमला इसमें ही रहेगा। तब फिर भी तो इसके जुमला अंदर इसमिया रहेगा। जमाना आ जाएगा इसके नहीं अंदर। नहीं नहीं, जुमाना नहीं आएगा, काम करना तो नहीं ना आ गया नहीं जुमाना, नहीं, मतलब कि काम तो इसमें नहीं है आप, ना, काम नहीं है, ओके जस्ट जमाना है, काम नहीं ओके है। ओके ओके। यानी कि वो तो नहीं, ज़र्फ कल आ गया ना, एक कल ज़र्फ मेष आ पर है गया तो उसमें। उसमें तो इसमें ज़र्फ आ लेकिन गया इसमें कल। टाइम तो मेंशन हो रहा है, आपने कहा कि टाइम मेंशन होगा, कल रखी लेकिन थी। वो इसमें ज़र्फ है ना, मतलब अब वो वो इसमें ज़र्फ है, ज़र्फ वो है वो ज़र्फ लेकिन जर्फ फेल नहीं है। जर्फ हाँ, वो फिर ज़र्फ़े आप ज़मा उसमें पाया गया, लेकिन उसमें काम का काम होना नहीं पाया गया, मतलब उसमें फिर ज़माना नहीं पाया कि किसी की तो काम का फेल होना नहीं नहीं होगा। पाया गया, तो फिर उसके अंदर नहीं पाया गया। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे असाब, आपने खूबसूरत घड़ी को लिखा अस्सातु अल जमीला। तो अगर इसका तो मतलब मैं ये समझूंगी कि एक खूबसूरत घड़ी, अगर नहीं, मैं खूबसूरत क्योंकि घड़ी अल करती तो अल लगने से एक आएगा नहीं सिस्टर, अल लगने मैं से एक नहीं आएगा। नो मैं इसको यूं क्यों ना कहूं कि सातुल जमीला तू, सातु सातुल, जमीला अच्छा तू। हाँ अल्लाह वैसा ने भी बनाया। वैसा बोल सकते हैं, वैसा बोल सकते हैं, सातुन एक जमीलतुन। मिनट, हाँ हाँ। नहीं एक नहीं मिनट, इनको पहले मैं इनका सेंटेंस लिखती हूँ, आप इनको एक मिनट नहीं बोलने दें। ठीक है, एक मिनट इनको बोलने दें। सातुन, आपने कहा सातुन जमीलातुन लिखूं? नहीं नहीं, वो नहीं होगा, जी नकीराना। नहीं, जी एक मिनट इनको बोलने दें आप प्लीज, रोल नंबर 81 जी इनको जी बोलने दें। ठीक है, सातुन ओके ओके जमीलातुन, ओके सिस्टर। आप बोले अच्छा क्या ओके बोले? ठीक है, मैं समझ गई, क्योंकि ये नकरा बन गया तो मुब्तदा नहीं होगा। हाँ ओके। नहीं होगा। हाँ, अब बस मैंने कहा था इनको समझने देंगी ना तो ये खुद फिर इनको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब इनको जी जी समझ आ गई जब मैंने इनको लिख के दिखाया। ठीक है, क्योंकि वो जो है ना, हमारे पास मुब्तदा होता है, वो मारफा होता है, तो फिर अगर हम साथ तो जमीला तो लेके ये नकरा कैटेगरी होगी। ठीक है, नकरा इसमें बन जाएगा, मुनकबे तो सिर्फ ही नकरा होगा, तो फिर ये मुब्तदा नहीं बन सकेगा। ठीक है। अब देखें, इसी तरह से देखें, अब यहाँ पे खूबसूरत घड़ी मेज पर है, मुब्तदा में क्या होता है, एक हमारे पास इसम होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में खबर दी जाती है, अगले जो अगला इसम होता है उसमें खबर दी जाती है कि मुब्तदा के बारे में वो क्या बता रहे हैं। अब यहाँ पे था मेज में खूबसूरत घड़ी, हमारे पास मुब्तदा थी, तो उसके बारे में हमें खबर मिली है कि वो मेज पर है। ठीक है, अलल जी मकतबी, इसमें जो है ना वो जो है मुरकबे जारी है, असल खबर मुरकबे नहीं है, कायम मुकाम खबर है। हम्म, ठीक है। जी अब सिस। देखिए दूसरे जुमले में, अब घड़ी, अली की घड़ी खूबसूरत अली है। की घड़ी अब इसमें, खूबसूरत है, अब ये देखिए मुरकब दोनों जुमलों इजाफी, में ना, मुरकब हाँ, इजाफी कंस्ट्रक्शन होएगा सिस्टर। हाँ, सबसे पहले जो मुब्तदा है वो मुरकबे, आपने सबसे पहले देखना है मुब्तदा क्या है। ठीक है, हाँ मुब्तदा अली की घड़ी मुब्तदा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और खूबसूरत जो है उसके बारे में खबर दी जा रही कि अली की घड़ी जो है वो खूबसूरत है। ठीक है, मुब्तदा और खबर जी को जी। आप पहचानना है कि क्या कौन मुब्तदा बन रहा है और कौन सी सातु खबर है इसमें बनी। सातु अली जमीलत जमीलतुन। अच्छा, सातु आपने कहा सातु अली अलीन, अली, सातु अलीन हाँ, अलीन अली जमीलतुन। जमीलातुन। ठीक है, हम्म, यहाँ पे ये हमारे पास है सातु अली, ये जो है मरकब इजाफी हो गया, और यहाँ पे जमीलातुन इसकी खबर हो गया, मुब्तदा और खबर मिलके हम्म, ये जुमला इसमिया बन गए। हम्म।
मैंने ये जज़ाकल्लाहु खैरन तातुल कसीरा। अलीजी नहीं हो जाएगा, इसमें अली से आगे अल नहीं लगेगा, तातुल अली अली। अलीजी। अच्छा देखिए, अली क्यों नहीं अल लगेगा? तुम्हारा आलम इतना सिस्टर है, आलम इतना हो। हाँ हाँ, अस्माए अलम में से है ना, अस्माए अलम जो होते हैं ना, उस पे अल दाखिल नहीं होता, ठीक है, अल नहीं नकरा आता, पे तो। सही। ठीक 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 है। ठीक है। अब जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, रोल नंबर 81 आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह किया। रोल नंबर अब अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट बुलाएं। असाजा एक मिनट, मेरा इसमें सवाल है, अली के ऊपर फिर जेर नहीं आएगी क्योंकि मजरूर हो रहा है। जी अली सिस्टर, ये अली हमने ये कहा ना, अली ये नहीं कहा है। अली जी से रोल नंबर देखिए 37 आप आ जाइए। अली जी। अच्छा अच्छा, आप लोगों के ज़हन में कोई जुमला है कोई जिसमें मुरक्कबात का इस्तेमाल है, तो आप हमें बताएं, हम यहाँ पे उसको करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब हम उतनी देर में कर रहे हैं, आप लोग अपना कोई जुमला अगर आपके ज़हन में कोई है तो आप लोग बाकी तैयार करें, ठीक है। रोल नंबर 37 है हमारे साथ। जी जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नंबर 3 सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे नए हाँ, उस्ताद की बेटी मदरसे में नए है। उस्ताद की बेटी मदरसे में है, मदरसे में है, नए उस्ताद की सबसे पहले बेटी। ये इसमें नए, जुमले को पहले जुमला कौन सा हाँ, है ये? ये तो इस्मिया है या फेलिया है? इसमें, इसमें ही हाँ, है अब मुब्तदा, मदरसे, हाँ, हाँ। इसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, पहले ये मुझे बताएं। अब मुब्तदा तो इसका यही होगा, उस्ताद की बेटी, नए उस्ताद की बेटी। ये हाँ, नए उस्ताद ये मुरकब मुब्तदा इजाफी, है। हाँ, ये और यहाँ पे मुब्तदा बनेगा, मदरसे में है, ये मदरसे खबर होगी में इसके वो बाद। कायम मकाम खबर बन जाएगी इसकी। तो हाँ, तो अब बताएं इसको। अल अल बिन्तुल मुअल्लिमु, अब नए, नए को कहाँ डालेंगे बाजी? अल्लाह नए आएगा उस्ताद नहीं को, जब सिस्टर। शिफ्ट आती है ना, शिफ्ट अल आती अल है वो बिन्तो तो, लास्ट में। अच्छा, अब प्लीज बाकी अपने माइक्स म्यूट कर लिया करें, जो बोल रहे होते हैं सिर्फ उसको बोलने दें। ये मैंने सिस्टर शनीला जरा ध्यान रखें, फिर डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। हाँ, आप बताएं, अल आपने कहा बिन्तुल, नए नहीं अल तो उस्ताद नहीं की आएगा ना, बेटी। बिन्तो, हाँ। बिन्तु हाँ, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमु जदीदतुन, बिन तू, जदीदुन, आप जो अच्छा जो बिन्तु आप मुअल कहेंगी मैं वही लिखूंगी। हाँ, बिन्तु बिन्तुल मुअल्लिमु, बिनतुल मुअल्लिम आपने कहा है, ठीक है। बिनतुल बिन्तुल मुअल्लिम। मुअल्लिमु जदीदुन यहाँ डालेंगे बाजी, फिर मदरसे, मदरसता, अच्छा, अब फिर आपने ना मदरसती आएगा। शिफ्ट किस आप, जदीद को कहाँ, अच्छा आप नए को देखिए, कहाँ डालेंगे? हाँ, आप देखिए ने जो है किसकी शिफ्ट है, शिफ्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ना नया। ने नए, हाँ, किसकी सिफत शिफ्ट के है? दर, हाँ, किसकी मुअल्लिम की सिफत है है ये? ना। हाँ तो हाँ, तो मुअल्लिम की है मुअल्लिमुल, ना। अब हाँ तो अब देखिए मुअल्लिमुल एक मिनट। जदीदु, हाँ अब हाँ मुअल्लिम की जो आपने मुअल्लिम को पूरा इसको हाँ, डिफाइन करना है, ठीक है। अब हम अच्छा, यहाँ पे एक हमने मरकबे इजाफी ठीक बना है, लिया है, ठीक है। अब मरकबे तौसीफी बन जाएगा साथ में, तौसीफी बन रहा है, तो आपने चारों एतबारात से हमने कहा है ना, मुअल्लिम, मरकबे तौसीफी चारों एतबारात से हाँ अच्छा, हाँ सही। कंपैटिबल होता है। अब इसको अल कंपैटिबल करें, अल मुअल्लिमुल। अल मुअल्लिमी, मी आएगा ना, जेर लगेगा उसकी हाँ, ठीक है, मुजाफ वो की वजह हमने से। लगा दिया है। अल मुअल्लमी अल जदीदी आएगा, हाँ, अल जदीदी आएगा, ठीक है। अब ये अल देखिए, ये जदीदी पूरी आएगी, हमारे पास हाँ एक पूरा हमारे पास मुरकबे तौसीफी कंस्ट्रक्ट हो गया है कि अल हाँ मुअल्लिमी और हाँ चारों एतबारात से बराबर है ना ये। हाँ जी। और फिल मदरसती भी जेर के साथ आएगा, जर हाँ, की फिल वजह से, मदरसाती, और ये कायम काम खबर हो गया फिल मदरसाती, ठीक है। हाँ, कायम मकाम खबर हो गया, सही। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 पे है, मेहनती मुदीर का बेटा मेहनती पहली जमात मुदीर में का है। बेटा पहली जमात में है, मेहनती मुदीर, वही है इसकी तौसीफी वाली कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो इब्नुल, इब्नुल मुदीरी कहेंगे, इब्नुल मुदीरी, इब्नुल मुदीरिल मुदीरी। मुदीरिल मुदीरिल अल मुजतहिद, मुजतहिदी फिल, इब्नुल मुदीर मुजताहिदी। मुजतहिदी फिल फस, जमात को क्या कहेंगे, फसल फिल, कहेंगे, हाँ, फिल फसलिन। फिल फसलिल अव्वल, अब अब पहली जो है ना, इसकी अव्वली, शिफ्ट बन रहा है ना। हाँ, जमात की शिफ्ट बन रहा है पहली, ठीक हाँ है, शिफ्ट फसलिल बन रहा है अव्वल, ना। हाँ
जी हाँ, जी फसलिल अव्वल। अब फसलिल ये भी अव्वली। जो जिस हालत में जो है हमारे पास अल फसल है, उसी हालत में अल अव्वल भी आएगा, ठीक है, अव्वली फसलिल भी आएगा, हाँ, अव्वली। अव्वली, ठीक है। सही, जज़ाकल्लाह। देखिए आपने ना इसको अंडरस्टैंड करके हर चीज को करना है, ठीक है। जी, ये भूल जाते हैं ना बाजी में, माशाल्लाह ये कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। चले, आप लोग खुद माशाल्लाह जो है ना, जो मेहनती होते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छी समझ आ नहीं जाती है। नहीं, आपकी क्लास में बैठ के बड़े मजे आते हैं। मेरी चीजें इतनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं बाजी, वरना अकेले करने बैठते हैं तो कितनी गलतियां कर लेते हैं। लेकिन देखिए हाजिरी कितनी जज़ाकल्लाह। कम होती है स्टूडेंट्स की हाँ, क्लास में। आप ये भी देखें, नहीं क्या करें, पुराने गांव अल्लाह की ताला मस्जिद का हिम्मत। दरवाजा खुला है। पुराने गांव, अब ये भी सिफत आ गई यहाँ पे गांव की, और पुराने गांव की मस्जिद, अ, मस्जिदुल मस्जिदुल गांव को क्या कहेंगे बाजी, गांव, गांव की होती है करिया, करिया। करिया, हाँ, मस्जिदुल अब पहले, करी अब मुझे बताइए यहाँ पे करियतिल। मुब्तदा क्या पहले, नहीं पहले इसको मुब्तदा को पहले डिफाइन करें। मुब्तदा कहाँ पे और खबर किधर है? पहले उर्दू हाँ, में इसको हम पुरा पढ़ लेते हैं, फिर जी 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 अरबी आसान जी जी होगी। हाँ, ये पूरा जो है ना बनेगा पुराने गांव की मस्जिद का दरवाजा। ये पूरा बनेगा अपना पेचीदा मरकब इजाफी बनेगा, हम्म, मुब्तदा बन के, और खुला है जो है वो इसका क्या नाम है, मुखबर बनेगी। तो अब ये जो हाँ, अब मस्जिद का बनाए। दरवाजा पहले आएगा, है ना, हाँ, जी जी। बाबुल मस्जिदिल करियती, करियतिल करियतिल कदीमती, अल कदीमती। अब ध्यान से, आप जो कह रही है मैं वही लिख रही हूँ। मैं मुझे हाँ, नहीं पता मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। आप जो बोल रही है मैं वो बाबिल, लिख रही हूँ। हाँ, बाबुल बाजुल मस्जिदिल मस्जिदिल करियाती। मस्जिद, हाँ, नहीं अलिफ लाम नहीं आएगा बाजी, वो तो पेचीदा है ना, तो करियती ही हाँ, आएगा सिर्फ, यहाँ पे करियती करियाती फिर आना है। हाँ, आगे। करियती, करियत करियतिल जदीदती। अब ये यहाँ पे तो पुराने हैं, वो कदीमा तौसीफ आएगा ना, मिलेगा, हाँ, कदीम है। पुरानी, हाँ, कदीमती, हाँ, सॉरी, कदीमती। तो ये तौसीफ ही बन जाएगा ना, अल करियती, कदीमती, अल अल करियाती अल कदीमती, हाँ, कदीमा। कदीमती, अच्छा, हाँ, सर यहाँ अली मस्जिद ही ठीक है। में अलिफ लाम नहीं अभी लगेगा ना? नहीं, मैं अलिफ अभी लाम नहीं है, आपने नहीं ओ बोला। नहीं, अच्छा, समझने दो ना बेटा। अभी अभी नहीं बोलना था रोल नंबर बेटा 81। मैंने कहा था ये कंप्लीट 81 है करेंगे ना, जुमला, फिर 81, इसको हाँ जी ना, जी, बोलेंगे। सॉरी सॉरी बाबुल सॉरी मस्जिद। सिस्टर। अब देखें मुरक्कब इजाफी पेचीदा बना रहे हैं तो अल कट जाएगा यहाँ पे भी ना, हाँ, करियतिल कदीमती हो गया, और इसके हाँ, बाद अच्छा। मफ्तू मफ्तू, मफ्तूहुन, दो पेश खबर बनेगा मफ्तूहुन, ना। अब यहाँ पे अलिफ लाम मफ्तूहुन कटेगा होगा। बाप के बाद। जी जी। ठीक है। जजाक। अब आपने जो है ना, मैं पूछती हूँ ये इसमें क्या गलती की है, और वो अभी इन्होंने बता अरे दिया है, लेकिन जो है ना अलिफ अभी लाम, हम जो है हाँ। ना किसी और से पूछेंगे कि इन्होंने रोल नंबर हाँ 8 हाँ। आप बताएंगे इन्होंने जी। क्या गलती किया है। जी। जी, बाबुल मस्जिदिल करियती, मैं इसका सही वो- वाला बताऊं? हाँ, इसका बताएं इन्होंने क्या गलती की है बीच में, ये इन्होंने जो जुमला बनाया है। इसमें मस्जिद के साथ अलिफ लाम नहीं आना था सबसे पहले, हाँ, वो क्योंकि एक हो गई। और ये मतलब उसके बाद इन्होंने तो अल भी कटवा दिया, अल करिया तू अल कदीमा भी नहीं इन्होंने कहा नहीं आना। नहीं, ये तो आएगा ना बाजी, वो तो मुजाफ इलेह अच्छा, बन वो जाएगा। आएगा। हाँ, चलो वो तो ठीक है, आएगा ना। और ये वो आएगा फिर वो बाकी। तौसी भी बनेगा, तो उसमें कदीमता में भी आएगा अलिफ लाम, क्योंकि हाँ, करिया में अब आया है बताएं। तो। बाकी मुझे तो यही लग रहा, बाबुल मस्जिद करियती अल कदीमती मफ्तूहन। ठीक है। जी। बाबू, हमने कहा बाबू मस्जिदी अल करियती अल करियती अल कदीमाती मफ्तूह। मफ्तूहुन। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। जी। जजाकिल्लाह बाजी। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब यही आप भी हमारे साथ हैं, रोल नंबर 8, ठीक है। रोल नंबर 8 है हमारे साथ, अली का भाई जी, मेहनती है। एक मिनट।
इसमें पहले ये जुमला कौन सा है? ये जुमला इसमिया है, ये जुमला फेलिया है? ये जुमला इसमें है। हाँ, जुमला क्योंकि इसमिया है। और मुब्तदा और खबर की आप निशानदेही करें कि इसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। इसमें मुब्तदा अली का भाई है और इसकी खबर है कि वो मेहनती है। हाँ चले, अब आप बनाए मुब्तदा पहले। इसमें पहले भाई की ट्रांसलेशन है कि अखू अलीजन, अली के नीचे अली के साथ वो नहीं आएगी अलिफ लाम। हाँ, अहू अलीन और मेहनती का आएगा मुजताहिदुन। मुजताहिदुन। यहाँ पे हमारे साथ हो गया अहू अलीन मुजताहिदुन। मुजताहिदुन, अहू क्यों आया हमारे पास? ये यहाँ पे अहू किस अस्मा में से है? जी अहू किन अस्मा में से है? अम, ये गैर मुंसरिफ। गैर मुंसलिक नहीं, अहू जो अस्माए खमसा में से है, जिनका इराब कहाँ कैसे शो होता है? अस्माए खमसा का इराब कहाँ से शो होता है? ये हमने हालत रफ में कैसे कहा? हालांकि अहू तो वाव के ऊपर जज़म आ रही है, ठीक है, तो फिर हमने अहू इसको कहा, कैसे कहा ये हालत रफ में है? बताएं। जी हमने कैसे ये डिसाइड किया कि ये मुजाफ इलैही की कंस्ट्रक्शन है ना, मुजाफ इलैही की, मुरकबे इजाफी है। जी मुरकबे इजाफी का इराब हमें मुजाफ से पता चलता है। तो यहाँ अहू है, तो अहू का इराब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये हालत रफ में है? ये अभी हमने जो है ना वो किया भी था, होमवर्क के दौर पे भी किया था। आप सोचें कि हमें जो है इराब बिल हरूफ क्या होते हैं? इसमें जुमला इसमें के पहले दोस्त होते हैं, मतलब इसमें ये होता है कि इसका मुब्तदा हमेशा हालत रफ में आता है। जी वो तो हाँ, हालत रफ वो तो है आ गया हालत रफ में, और ये मुजाफ इलैही जो है वो हालत जर में है। दोनों चीजें हो गई हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो अखू है, ये हमें कैसे पता चलेगा हालत रफ में है? क्योंकि इसके आगे वाव आ रही है, जब वो अस्माए खमसा होते हैं वाह उसमें पेश जी, ये अस्माए, तभी। हाँ अस्माए हाँ सिंपल इस तरह से, इसमें अस्माए खमसा का जो इराब होता है वो हरूफ से शो होता है, और जो वाव है वो हालत रफ की हालत को शो करने के लिए लाया जाता है अस्माए खमसा में, ठीक है। अब मेहनती लड़का अली का भाई है, इसको कंप्लीट करें। एक सवाल है मेरा। जी करें। मैं ये जो लड़का अली का भाई आपने क्या अखू अलीयन, क्या ये अखा अलीयन हो सकता है? अखा आखा अलीयन अलियन या क्यों नहीं? अखी अलीयन? ये क्यों नहीं हो सकता? रोल नंबर 8 आप बता रही थी, बताएं क्यों नहीं हो सकता ये? सिस्टर मैं बताऊं? चले आप अगर मैं बताएं। बता दूं, जी सिस्टर, मुब्तदा हमेशा मरफू रहेगा। मरफू के लिए ये रफा है, ये ठीक मैम है, ये और ओके। खबर की नसब जगह नहीं आ पर आ रहा सकता। है तो खबर भी हालत रफा में होती है। अली का जी भाई खबर की जगह पर जी, आ रहा है खबर भी तो खबर की रफा मुब्तदा भी भी तुम ना ये। अच्छा, यहाँ पे देखें, ठीक है, आपने समझ आ गई होगी कि अली का भाई जो है ना हमारे पास यहाँ पे मुब्तदा है। मुब्तदा जो है ना हालत रफ में होता है। और अखू अहा अखी, अखा जो होता है वो हालत नसब की हालत है, नसब। ठीक है। अस्माई खमसा में जो अहा है अलिफ के साथ हालत नसब शो हो रही है, और या के साथ हालत जर शो हो रही है। अखी। और अखी। मुब्तदा की जगह पे हम हालत नसब नहीं लेके आएंगे, ठीक है। मुब्तदा की जगह पे जी। हमें हालत रफ वाले अस्मा चाहिए, ठीक है, आजा। जिनका इराब हालत रफ में हो, ठीक है। जी आप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था हमको समझ आ गई होगी। बाकी सब अपना माइक्स म्यूट कर लें। रोल नंबर 27 आप हमारे साथ आए। ये जी बताएं, सर। मेहनती लड़का अली का भाई है। सबसे पहले इसमें हम मेहनती लड़का देख लेते हैं, जो हमारा है जी, जो हमारा है मुब्तदा, और ये हालत रफ में जी होगा और ये मुरकब तौसीफी है। हम इसको ऑपोजिट करके लिखेंगे, यानी लड़के की पहले हम बनाएंगे अरबी, और ये हालत रफ में हो जाएगी वालादुन। और अब चूंकि हमने इसको मार्फा में लेके आना है तो अल वालादुन, और अल मेहनती का वाला होगा
और मेन सी का होगा अल मुज्ताहिदु। ये हमारा कंप्लीट हो गया मुब्तदा हालते रफ में। उसके बाद अली का भाई है, ये अब हमारी खबर आ रही है और ये नकरा में आएगी और ये मुरक्कब इजाफी है। अली का कैसे होगा? भाई ये हो जाएगा अली का भाई, भाई पहले आ जाएगा अहू अलीयन, अहू अलीयन, ठीक है। यहाँ अल वालदु अल वालदुल मुज्ताहिदु अहू अलीयन। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका आ गया, ठीक है। ये मुब्तदा और खबर, यहाँ पे ये नकरा है और ये मार्फा है, ठीक है। और दोनों हालते रफ में अहू अलीयन जो है, अगर हम इसको मुजाफ इला मार्फा देखें तो यहाँ पे ये अहू अली मार्फा की कंस्ट्रक्शन बन रही है, लेकिन हम इसको जो हमारी कैटेगरी है इसमें ले सकते हैं। जब हमारे पास मुब्तदा और खबर बन रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि मुब्तदा भी मार्फा है और खबर भी मार्फा है, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से लेना चाहें। ये हमारी वो 1% वाली आ जाएगी जिसमें नकरा हमारा 99%, खबर हमारी 99% नकरा होती है, लेकिन 1% मार्फा आ सकता है। जी। और कुरान पाक को आपको ना इसकी बेशुमार एग्जांपल्स मिलेंगी कुरान पाक में, जहाँ पे मुब्तदा भी मार्फा है और नकरा भी मार्फा आगे आ रही है। और बाद आपको कुरान पाक में ये स्लूब भी मिलेगा कि खबर जो है वो मुकद्दम आ जाती है और जो मुब्तदा है वो मुअख्खर भी आता होता है, मतलब मुब्तदा बाद में भी आता है और खबर पहले भी आ जाती होती है। और वो फिर आप इनके इराबी हालतों से ये चीज़ों को देख के पता करते हैं, ठीक है, तो वो किस हालत में है और कौन सी किसके बारे में क्या खबर दी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हम बाद में करेंगे। पहले जो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, अच्छा, यहाँ पे वाहिद को मुसन्ना बनाएं। रोल नंबर 27 आप हैं हमारे पास, ये 2 सेंटेंसेस आप बनाएं, वाहिद को मुसन्ना बनाएं। ज़ालिका, अब पहले आपने देखे इनको, आपने ये नहीं करना कि आपने हर लफ्ज को ही जो है ना वो देते जाना है कि हमने हर लफ्ज को ही मुसन्ना बना ले। ये एक जुमला होगा, आपने जुमले को जमा बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि एक एक लफ्ज को आपने जुमला बनाते जाना है। जैसे आप कहेंगे कि अली का एक भाई है, तो आप इसको अगेन जुमला, इसको ना अब जो है ना मुसन्ना में चेंज करें या फिर इसको जमा में चेंज करें। तो आप कहेंगे अली के भाई हैं, मतलब ये हो गया जमा में चेंज, या फिर अली के 2 भाई हैं, ये मुसन्ना में चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने करके करना है, जुमले को आपने जमा में करना है, हर एक लफ्ज को आपने हर एक लफ्ज को नहीं करना, ठीक है। पहले इसको देखिए पहचाने ये अब क्या यहाँ चीज है। पे देखिए यहाँ पे ये जालिका है, इसका मतलब है ये इसम इशारा है। जालिका रजुलु, ये इसम इशारा हो गया और मुब्तदा हो गया, सालिहुन हमारी खबर हो गई। अब हमने इसको मुसन्ना बनाना है, तो जालिका का मुसन्ना हो जाएगा जानिका और रजलुन का हो जाएगा रजुलानी स्वालिहानी। क्योंकि अब देखिए हमारे पास है वो इसका जो ना वो आदमी नेक है, ठीक है, हमने एक जुमला है, ठीक है, वो नेक आदमी है, वो नेक आदमी, ठीक है, आदमी नेक नहीं, नेक आदमी है, क्योंकि ये मरकबे तौसीफी है, वो नेक आदमी है। तो इसको हमने जब हमने कहा वो एक नेक आदमी है, तो हम कहेंगे वो ज्यादा 2 नेक आदमी है। अब हमने जब इसको 2 नेक आदमी को लिखा ना, राजुलानी स्वालिहानी, तो फिर अब देखिए ऑटोमेटिकली जब ये जो हमारे पास जो मुब्तदा है जो खबर है खबर है, अगर वो मुसन्ना आ गई है तो फिर हमारे पास जो मुब्तदा है वो भी मुसन्ना में चला जाएगा, ठीक है। ये हमने इस तरह लॉजिकली बनाने हैं आप लोगों ने, ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे आप चीज को बना दें, ठीक है। इस लॉजिक अल मरातू फिल गुरफाती, अलमरअतु एक औरत है। एक्सक्यूज मी मैम, ये जरा दोबारा बता दें, क्या बताया आपने इसका? मैंने कहा इसका आपने मुसन्ना? जुमले को देख, ये जुमले, अच्छा, हाँ। जुमले का आपने मुसन्ना बनाना है, ये जुमले का जमा बनाना है, ये जुमले का जो भी बनाना है, तो वो जुमले का आपने हम्म। बनाना है। जैसे हम कहेंगे वो आदमी आम खा रहा है, नहीं मतलब ये तो जुमला फेलिया हो गया ना। तो आप इसी तरह से कोई भी यहाँ पे जैसे है 2 आदमी खड़े हैं, या लिखे एक आदमी खड़ा है, आपने कहा ना एक इसका आदमी खड़ा है, अब मैं कहूंगी इसको मुसन्ना में बनाएं, तो आप लिखेंगे 2 आदमी खड़े हैं, आप फिर मुसन्ना में ऐसे ही बनाएंगे ना। साथ ही इसको हम पहले अगर उर्दू में कर लेना तो फिर उसके बाद हम इसको अरबी में भी आराम से कर सकते हैं। हाँ, मेरा एक अरबी में डाउट है पहले, क्योंकि सिस्टर। फिर आपने कंपेटिबिलिटी देखनी है, फिर आपने अगर जो है ना, फिर आपने कहा 2 आदमी जो है ना वो खड़े हैं,
हमने कहा एक आदमी खड़ा है, अब मैंने कहा इसको मुसन्ना बनाएं, तो आपने लिखना है 2 आदमी खड़े हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि मैंने जो है ना 2 आदमी खड़े हैं, अब 2 आदमी की मैंने बनाई राजुलानी, जो है अब राजुलानी मैंने बना दिया 2 आदमी खड़े हैं। तो अब जो है ना का ईमानी, अब ये जो है ना मैंने अब देखना है कि अगर क्योंकि मुब्तदा और जो है वो खबर एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं, फिर मैंने उसको मुब्तदा को खबर के मुताबिक या खबर को मुब्तदा के मुताबिक जो भी इनकी कंपेटिबिलिटीज हैं वो आपने देखनी है, ठीक है, नहीं सिवाय तो उसद के अलावा रजोलानी बाकी। सालिहानी तो समझ में आ गया, रजोलानी सालिहानी तो समझ में आ गया, तो वो तो चेंज, जी दोनों सिस्टर, साइन चेंज हो गए। ये सिस्टर और एक डाउट जालिका है, नहीं ये चेंज होगा, जालिका कहने का को नहीं नहीं, मतलब। जानिका इसमें हो ऐसे भी जाएगा हो सिस्टर। जाएगा। नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। हम सबसे हाँ पहले हाँ। लफ्ज को ले लेते हैं, जालिका को ले लेते हैं, उसको हम मुसन्ना कर देते हैं, और उसके बाद आगे देख लेंगे कि उसके रेलिवेंट होके वो मुसन्ना आ रहे हैं या नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा दूसरे वाला अगर हम करें ना, जिसमें है कि औरतें कमरे में हैं, अब हमने सबसे पहले जो अपना मुब्तदा था उसको जब मुसन्ना बनाया ना, तो फिर हमने आगे देखा कि उसको जरूरत है या नहीं जरूरत। आगे तो जरूरत ही नहीं थी, वो कमरे में है, एक औरत भी, 2 औरत भी। तो सिर्फ इसम को ही बनाने से ना हमारा आगे का सारा सेंटेंस रेलिवेंट हो जाएगा कि उसको हमने मैम अब एक चेंज देखो बात करना ये है या वाले नहीं करना। आपको, मैम हाँ एक बात अब मैं देखिए इस बार, जी पूछे। मैम सर ने कहा था कि जब भी इसमाए इशारा आएंगे ना, यानी कोई मुरक्कब इशारी को बनाना होगा हमने, तो हमने पहले हम इशारों ले को रेडी करना है, फिर इशारा उसके हम्म। अकॉर्डिंग लेके आना है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको जी मुसन्ना में लेके जा रहे हैं ना, तो मुरक्कब तो सीफी जो है हमारा, वो मुसन्ना अगर हम इसको बनाते हैं खबर सिस्टर को। इसमें मुशारुन इलैह का ये नहीं है ना सिस्टर, इसमें ये तो इसमें इशारा ये है ना। मुरक्कब ताम है ना, ये जुमला इस्मिया है ना सिस्टर। और एक मंजे एक डाउट सिस्टर, ये तो मैम जालिका मुब्तदा भी और खबर में जानिका हो जाएगा मुब्तदा और कि खबर में वन बाय मुताबिकत वन, जानिका होती हो है। एक जाएगा? एक वन बाय वन करें, ठीक है, पहले एक को बोलने दें फिर दूसरी बोलें। हम्म, जी सिस्टर, ये आपको जानिका हो जाएगा क्या सिस्टर, ड्वेल करना का जी तो? हाँ, हो जाएगा, हाँ फिर, हाँ, हाँ तब हो जाएगा रजुलानी जानी का। सालिहानी। अब इसके मुताबिक अब ये मुब्तदा, अब आपके पास अगर जानी का मुब्तदा बन गया, तो अब आपने कहा ये जो है ना ये दो दो लोगों के लिए है, ठीक है। तो अब आपने कहा हाँ कि अब यहाँ पे भी जो है कंपैटिबिलिटी होगी ना मुब्तदा और खबर की आपस में। जी जी। तो फिर अब ये मुरकबे तौसीफी है, अब इसको भी अब राजुलानी आप बनाएंगी, हाँ तो अगले जो सालिहानी। उसकी जो सिफ्त होगी वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डुअल हो जाएगी, ठीक है। जी जी। राजुलानी सालिहानी। अब इसी तरह से हाँ जैसे इस हमारी यहाँ पे रोल नंबर 27 ने बताया अल मरातू फिल गुरफाती, एक औरत कमरे में है। अब हमने अब बताया कि ज्यादा 2 औरतें कमरे में हैं, तो अब हमने ये नहीं करना कि हमने यहाँ पे औरतों की मुसन्ना लिखी है तो अब गुरफा तानी लिख दें, फिर ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है, जुमले को अंडरस्टैंड करके आपने बनाना है हाँ, वो कि नहीं दो होएगा औरतें वो। कमरा में हैं, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अ, रोल जी जी। नंबर, इनका नाम रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, 8, आप बताएं। रोल नंबर 8 आप बताएं, आपने हैंड रेज किया है। अब इसकी रोल नंबर ट्रांसलेशन बता 27 दो। कंप्लीट करें। जी जी मैं हूँ। जी जी, आप हमारा 2 वाला करूँ या 3 वाला करूँ? 2 वाला आपने कर लिया, तीसरे वाला करें। अच्छा जी, अब इसमें है अल कलामु अलल मकतबी। कलम जो है वो मेज पर है। अब अल कलम को डबल करेंगे हम, यानी मुसन्ना में लेके जाएंगे, तो अल कलामानी हो जाएगा। और उसके बाद आगे जो हमारी मुतल्लिक है, खबर नहीं है इसमें, मुतल्लिक है, उसको हम एज इट इज रहने देंगे अलल मकतबी। ये दो हमारे कलम पास मेज हो पर गया अल होंगे। कलमानी अलल मकतबी, ठीक है, ये हो गया। अल वलदु सगीरुन, इसको करें। इसमें है कि जो लड़का है वो छोटा है, तो फिर हम करेंगे कि 2 लड़के छोटे हैं, तो अल वलदानी सगीरानी। ठीक है, अब ये देखिए कितना आसान हो गया है, बस आपने इजी होके करना है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। अल मुस्लिमु फिल मस्जिदी। अब इसमें अल मुस्लिमों को हम मुसन्ना में डाल देंगे, मुसन्ना कर देंगे, और उसके बाद इसकी हमारे पास खबर नहीं है। अगर खबर होती जैसे कोई भी मुरकब तौसीफी या कुछ भी होता, तो हम उसको मुसन्ना में कर देते, लेकिन वो नहीं है, आगे मुतल्लिक की खबर है, तो उसको ऐसे इट इज रहने देंगे अल मुस्लिमानी फिल मस्जिदी। 2 मुसलमान जी मस्जिद में हैं। जज़ाकल्लाह।
हाँ, बाराकल्ला फीक। ये देखिए अच्छा, आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक सवाल है अच्छा कि और जी जी पूछे। ये जो यहाँ पे इन्होंने इसकी जमा बनाई कि अल वलदानी सगीरानी, मुसन्ना में हमारे पास दो हालत होती हैं, एक आवाज होती है आनी और एक ऊनी, नहीं एक आनी एक हम्म। ऐनी, तो वो दूसरी आवाज भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आनी की जगह? नहीं, अब नहीं, आपने ये देखना है कि आप मुरक्कब बना रही हैं या फिर जुमला बना रही हैं। या आपने अल वलदु सगीरुन, ये क्या है, जुमला है या मुरक्कब है? जुमला। जुमला रोल नंबर 8। इसलिए कि जुमला इसमें है ना ये, खबर और जुमला मुब्तदा है। इसमें है। जी। हाँ, खबर और मुब्तदा है ना, यहाँ पे मुब्तदा है पर अल वलद और सगीरुन इसकी खबर है। तो अगर आप आपको कह रहे हैं कि मुरक्कब बनाए और मुरक्कब को हालत जर में बनाए या हालत नसब में बनाए, तो फिर वो आपको क्वेश्चन की डिमांड होती है ना, आपको ये जो है एक जुमला है, जुमले में मुब्तदा जो है ना वो हालत रफ में ही होता है। अब आप इसको अल वालिदैन ही लिख देंगी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, हालत नसब में नहीं होता मुब्तदा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बुलाएं जी मैं या कमल रानी 67, इनको रोल देख नंबर लें। 67। चले रोल नंबर 67 को बुलाएं, नेक्स्ट वाला करें। जी, मोनस को मुजक्कर में बनाएं। हम्म। अल बिन्तु सगीरातुन, अल वलिद अल वलदु, अल वलदु अल वलदु सगीरुन। हाँ, अल वलदु सगीरुन आसान, देखें इसको आपने आराम से मुज़क्कर बना लिया दोनों को। फिर मुब्तदा और खबर दोनों को आपने ध्यान रखना है कि मुब्तदा को बनाया तो उसके मुताबिक मैंने खबर को भी चेंज करना है। अव्वल तो अगर तो जार मजरूर मतलब मरकबे जारी की सूरत में आपके पास कायम मुकाम खबर आ रही है, तो फिर उसमें आपके पास देखना होता है कि वहां पे नहीं, आप जरूरी नहीं कि आप नेक्स्ट को भी बनाना शुरू कर दें कि मरकबे जारी को भी आप मुसन्ना में लेके आ जाएं, ठीक है, उसमें तो कंपेटिबिलिटी ना हमें चाहिए होती है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अल मुस्लिम यहाँ पे आ रहा है मतबे जारी, अब इसको कैसे आप मुजक्कर में चेंज करेंगी, अल मुस्लिमा तो फिल बैती। अल मुस्लिमु फिल बैती। हाँ, देखिए आपने यहाँ पे आराम से इसको हो गया, हाजी हिमरातु कबीरातुन, इसका बना अ, इमरा का मुजक्कर क्या होगा? इमरा औरत को कहते हैं ना। रजला। ओके। हाँ रजुल। हाजा हाजा रज हाजा रजला कबीरुन। हाजा राजा ला कबीरुन, ये कैसे आप कह रही हैं, ये सिर्फ मौसूफ है ना, वो एक दूसरे कंपेटिव ओके, हाजा क्या होती है हाजा रजलुन कबीरुन। हाँ, हाजा राजुलुन कबीरुन, ठीक है। हम्म। ये हमारे पास आ गया मुरकबे। इसमें राजुलन कबीरुन हमने बस, जैसे स्टूडेंट पूछ लिए राजुलन कबीरन क्यों नहीं हम कर सकते इनको। क्योंकि उसने मरफू होना है, खबर है ना वो। ये हाँ मुरक्कब खबर है खबर हालते, हाँ हालते रफ में होगी खबर, रफ तो हम में इसको होगा। इसलिए राजुलन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मुब्तदा और खबर दोनों हमारे पास हालते रफ में होती हैं, ये आप लोग। और नेक्स्ट बनाए मुजक्कर को मुअन्नस बनाए। दहबल वलदु। अ, अच्छा ये एक वैसे जुमला फेलिया आ गया है, ये आप बना सकती है तो ठीक है, लेकिन जुमला फेलिया के टॉपिक में मैं जरूर इस तरह के क्वेश्चन करूंगी, अगर आप आपको आता है तो आप बना लें मुजक्कर को मुअन्नस। जहबल ज़हाबा जो है ना वो जहा एक जहबल लड़का। जहबल बिंतु। नहीं, जहाबा जहाबल बिन्तु जहबत कैसे? आप भी जहबत रोल नंबर 81 आप अपना माइक म्यूट करें जरा, पहले आपको ना म्यूट करेंगे फिर आप ना इनको जरा सोचने दें। अब ये वाहिद मुजक्कर जहाबत का भी है, हाँ। हाँ, यहाँ वाहिद मुजक्कर है तो मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस क्या होती है इसकी। जहाबत हाँ ज़हाबत और जहाबत अल बिन्तु। हाँ अलबिंतु। देखिए कितना आसान है, यानी कि ये आपने देखा ना, ये फेल है और ये फाइल है, फेल और फाइल है ना दोनों। हम्म। जी। इसमें भी वही है, अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, बाकी हमारा आज जैसे टॉपिक जुमला इसमिया का था, ठीक है। जलसत जलसत तालिबु। जलसत अत्वालिबतु। हाँ जलसत तालिबातु, यहाँ पे जो है ना ये फेल है और ये फाइल है, ठीक है।
اور हाज़िही نیکسٹ دیکھیں حاضہ मुस्लिमतु مسلم हाज़िही मुस्लिमतु حاضہ हाज़िही نیکسٹ हाज़िही अमरातु हाज़िही अमरातु अमरातुन सालिहतुन। ہاں بارک اللہ فیک. یہ دیکھیں کتنا آسان تھا. آپ لوگوں کو جیسے لگ رہا تھا شاید مشکل ہوگا لیکن آسان تھا. اب یہ ہمارا لاسٹ والا ٹاپک رہ گیا. اس کو ہم 2-3 اگزامپلز ہیں اس کو کر کے ہم انشاءاللہ کلوز کریں گے. تو جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہوگا انا کا جو ہے رہ جائے گا ٹاپک. اور یہ باقی جو تین ٹاپکس ہیں یہ ہم نیکسٹ کلاس میں جملہ اسمیہ کو کور کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ منڈے کو وہ کلاس لیں گے ہم جس میں جملہ اسمیہ کو کور کر کے ختم کریں گے. اور جملہ فعلیہ پھر اگلے کلاس سے ہم جملہ فعلیہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ میں بھی زیادہ ٹائم نہ لگے. ایک اور کلاس جملہ اسمیہ کے بارے میں کریں گے. ٹھیک ہے. جس میں انا کا استعمال لائے نفی جنس کا اور مال حجازیہ اور سوالیہ کو جو جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. یہ 4 ٹاپکس ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کوئی ان کے متعلق کوئی سینٹینس ہو, آپ کو کوئی کنفیوژن ہو, آپ لازمن کلاس میں اپنی کوئی لے کے آیا کریں کیوری کو. ٹھیک ہے. اچھا الابرار فی نعیم سسٹر شنیلا بلائیں جو رہ گئی ہیں. جی میم. میم کمل کمل دانش ایک رول کمل نمبر نہیں لکھا نا انہوں نے. ہاں کمل ان دانش کو آپ رول نے. نمبر آتا لکھا کریں. السلام آئی تھنک ہے علیکم. نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہمارے پاس یہ سوال دیکھیں. اس کو ہم نے آپ نے اس کا نحوی تجزیہ کرنا ہے. مطلب آپ نے بتانا ہے یہ ایک جو ہے جملہ ہے الابرار فی نعیم. یہ الابرار کیا ہے؟ اس کا تو نہیں پتا. فی نعیم تو جار مجرور ہے. ہاں الابرار الابرار. اچھا آپ اس کے ساتھ سمپل ہے. آپ ال اس کو لگا ال ہے تو سے اس میں میں چاہیں نہیں ہے. ال ہے تو مورف اس نہیں باللام. ہے. اس نہیں ہے. ہاں مورف ہاں یہ باللام اس ہے. میں ال اور وہ لگا ہوا جار ہے. مجرور ہے. ہاں جی اور جی حالت رفع میں بھی ہے تو اس کا مطلب ہے مبتدا بن رہا ہے. جی اس کا یہ مطلب ہے جی نا. جی جی. آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا تو آپ عربی میں بھی پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الابرارو جو ہے یہ مبتدا ہے. فی نعیم جو ہے فی حرف جر, نعیم اسم مجرور. تو مبتدا جو ہے اپنی قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. یہ فی نعیم قائم مقام خبر ہے. اسے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جی. اچھا اب نیکسٹ والے کی کریں. سسٹر اس کا اللہ معنی نور السماوات. سسٹر اس کا معنی کیا ہوگا سسٹر؟ ابرار ہاں معنی نیکوکار. بتا دو تھوڑی تھوڑی. نیکوکار نیکوکار جنت میں. نیکوکار نعمت میں ہے ویسا آئے گا سسٹر. ہاں نعیم جو ہے نعمتوں میں ہے. نعیم ویسے جنت کے کو ایک نام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نعمتوں سے نکلا ہے نعیم. اللہ جی نور سسٹر. السماوات والارض. اس کو کریں. اللہ یہ ہو گیا اسم, اور نور السماواتی یعنی آسمان کا نور. یہ ہے مرکب اضافی. اور نور جس اس میں نہیں مرکب اضافی نہیں, آسمان کا نور. اللہ بتائیں اللہ کیا ہے؟ اللہ اسم ہے اور معرفہ حالت میں ہے. اور اسم تو ہے حالت معرفہ میں بھی ہے لیکن ہمیں جملے کے اعتبار سے ہمیں بتائیں کیا ہے یہاں پہ اللہ. مبتدا ہے. ہاں مبتدا ہے کیونکہ اس میں مبتدا کی تمام جو خصوصیات پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ معرف باللام بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ اور جو ہے اس حالت رفع میں حالت رفع میں بھی ہے. اب نیکسٹ نور. نور. ہاں نور یہ تھوڑا سا گائڈ کر دیں گے. مرکب توصیفی ہے نہیں نور یا اضافی ہے. السماوات نہیں نور السماوات. دیکھیں پہلے نور کو دیکھیں. اس میں ال ہے نور نہ تنوین ہے. ہاں تو یہ مرکب اضافی ہے. ہاں اگلے والا اسم اور دیکھ لیں کیونکہ پہلے پھر مبتدا جو ہے السماواتی. ہاں کیونکہ یہ ہاں یہ مضاف ہے کیونکہ اس پہ وہ بھی تنوین بھی نہیں ہے اور علی بھی نہیں ہے. ہوں میں تھوڑی سی اور نکل گئی اگلے والا اسٹوڈنٹ. اسم حالت جر میں ہے. اللہ آسمانوں والارض. واؤ حرف والارض عاطف یہ عاطفہ ہوتا ہے. ہے پیچیدہ مرکب اضافی نہیں. پیچیدہ مرکب اضافی اچھا یہ پیچیدہ نہیں اس کو ہاں پیچیدہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. یہ واؤ کے ساتھ
جو ہے اس کی جو مرکب اضافی جو ہے اس کے ساتھ واو کے ساتھ اس کو وائی عطف کہتے ہیں، اور جو اگلا والا جسم ہوتا ہے وہ موصوف، اس کو ابھی بس پیچیدہ نہیں ہے، سمپل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نور السماواتی والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دیکھیں اس میں ایک دفعہ کاف ایک ہی آیا ہوا ہے نا، جب دو دفعہ جی آتا ہے نا جی تو پھر اچھا نمبر 3 کا بنائیں۔ اچھا پھر ہے انتم، یہ ہے انتم، یہ بھی مرکب اضافی ہے اور یہ انتم، مبتدا ہے۔ پہلے انتم کو ڈیفائن کریں، انتم ہے کیا؟ یہ مرکب اضافی ہے، مبتدا ہے اور اس میں ضمیر بھی شامل ہے۔ نہیں آپ دیکھیں یہ ہاں انتم پہلے بتائیں نا، انتم کیا ہے؟ مس مبتدا ہے نا، مرکب اضافی کا مبتدا تو ہے، ہاں کون سی مبتدا معرفہ ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ معرفہ کی کون سی کیٹیگری میں آیا ہے؟ مس دوبارہ بولیے گا، مجھے آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ یہ مبتدا کی کون سی کیٹیگری، مطلب ہم نے کہا مبتدا جو ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ کی ہم نے 7 اقسام پڑھی تھی، تو یہ معرفہ کی 7 اقسام میں کون سی کیٹیگری میں آیا انتم؟ معرفہ کی کون سی قسم میں آتا ہے انتم؟ معرفہ کے ہاں 7 پڑھی تھی ہم نے، علم تھا اور اس میں مجھے یاد ہو، میں یاد کی نہیں علم انتم تھا، اس کون میں سی، انتم موصول۔ ایک میری بات، انتم اس میں مصول ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں ضمیر ہے، کیا چیز ہے انتم؟ اس میں ضمیر ہے نا، یہ آپ ایسے ہی بتائیں نا کہ اسماء ضمیر ہے یہ، ہاں 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 آپ بتائیں۔ اسماء ضمیر ہے، اور اسماء ضمیر ہے اور مرکب اضافی میں یہ ہے، اور آگے جو اس کے آگے والا ہے وہ الفقراء السلام والا۔ یہ دیکھیں مرکب اضافی کہاں سے بن رہا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں مرکب اضافی کہاں پہ ہے؟ انتم ہو گیا، انتم جو ہو گیا اس میں ضمیر ہو گیا، یہ ہمارا لیکن اس میں مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہاں ہے۔ اس میں الفقراء کیا ہے؟ الفقراء الی اللہ، یہ تو اسم ہے، کیونکہ اس میں ہوتا نہیں اسم ہے، غلط، سب کچھ مکس اپ ہو رہا ہے مجھ سے۔ نہیں علم نہیں تو وہ کوئی نہیں، کوشش کریں۔ شاید جو ہے دیکھیں اس میں ضمیر ہاں ہے، اور مبتدا ہے، کیونکہ اس میں ضمیر مبتدا بن جاتے ہیں۔ الفقراء جو ہے نا، اب ہاں مبتدا کے آگے کیا ہے، یہ خبر ہے کہ تم خبر ہے، فقیر ہو، ہاں ہاں وہ ہاں وہ محتاج اس میں ہو، ضمیر کی خبر ہے، ہاں اور پھر اور اللہ یہ تو جار مجرور ہے۔ ہاں یہ جار مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جار تم ہاں ٹھیک ہے۔ اب سسٹر یہ آپ کے پاس سسٹر مبتدا، ایک یہ مجھے ڈاؤٹ سسٹر، انتم الفقراء یہ ضمیر منفصل یہ معرفہ ہے نا سسٹر، یہ بھی جی معرفہ جی ہے نا، نکرہ رہے تو نہ خبر بنے گا، یہ کو انتم الفقراء کو انتم یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا نا سسٹر؟ نہیں مرکب توصیفی نہیں ہوگا یہ، مرکب یہاں پہ انتم الفقراء، یہاں پہ ہم اس کو یہ یہ مبتدا وہ اور خبر کی جو توصیف ضمائر کریں ہم گے۔ نے بطور مبتدا پڑھے تھے، یہ وہ والی یہ کنسٹرکشن بھی جمع، مجھے یہ ایسا بھی لگ رہا ہے جمع، کہ وہ یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، یہ بھی مرفوع، یہ مرفوع، ویسا ہو رہا ہے نا سسٹر؟ یہ دیکھو نا، یہ معرفہ، یہ معرفہ، یہ جمع، یہ بھی جمع، یہ بھی مرفوع، یہ مرفوع، اور ایک کیا کیٹیگری؟ اچھا مس شائستہ، مجھے جو یاد آتا تھا، اگر جی مجھے صحیح یاد آپ بتائیں۔ ہے سامنے نا، جی جب ہمارے پاس انتم دیکھیں ان کے مرفوع، ضمائر آتے تھے تو ایک آج کو بہت کٹ جنس رہے، مذکر مذکر جی چار میں بھی اب سملیرٹی یہ ہے نا؟ دیکھیں ہمارے پاس مبتدا اور خبر جو ہے وہ سارے تین اعتبارات سے ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ معرفہ بس معرفہ اور نکرہ میں جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، باقی جو ہے مرفوع ہوتا ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی، جنس میں بھی ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، جنس میں بھی ہوتے ہیں جی اور عدد میں بھی ہوتے ہیں، تینوں چیزوں میں ہاں ہوتے ہیں نا کمپیٹیبل۔ اور جو ہے اگر اس طرح کے ہمارے پاس ان کے تم سب فقیر ہو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تم ان کے ان سب کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے، محتاج ہیں، فقیر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہاں جی پہ جو خبر ہے یہ معرفہ آئی ہے، لیکن ہے یہ خبر، ٹھیک ہے۔ اوکے اوکے سسٹر، اوکے
इल्लल्लाह, अल्लाह के मोहताज हो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, ठीक है। ये इसके ये पूरा एक जुमला बन रहा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम साजा। वालेकुम अस्सलाम। साजा मेरा ना एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है। लास्ट टाइम क्लास ज्वाइन की थी, मेरा छोटा बेटा जल गया था तो मैंने फिर लेफ्ट कर लिया था। तो अभी वो मैंने रिपोर्टिंग सुनी है क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था मेरा बेटा, तो मैं अभी घर आई हूँ आज। आप क्या हाल है आपके बेटे का? अभी बस वो छालों से भरा हुआ है, थोड़ा सा न, सारे हाथ उसका ना फूल गए। तो दुआओं की अल्लाह दरख्वास्त पाक भी है उसको शिफा, मुझे सिर्फ जी जी, अल्लाह ताला आपकी। उसको शिफा कामना अता फरमाए जी। मुझे आज की क्लास से लग रहा है मैं थोड़ा सा पीछे रह गई। आपने अल अबरार फी नईम में एक बात बोली थी कि ये कायम मुकाम खबर है, ये जार मजरूर मुतल्लिक होके खबर बनेगी या ये कायम मुकाम बनेंगे खबर के? इसको अच्छा, कैसे हम ये लिखेंगे? जब जैसे ना, मैं देखिए जईदुन जालिसुन, जईद बैठा है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास जईद, हो गया हमारे पास मुब्तदा हो गया, कई जो है ना जालिसुन जो हो गया खबर हो गया, ठीक है, असली सही खबर वाली, सही इनकी जार मजरूर के बगैर जो होती है सही खबर जो होती है। अब अलल कुर्सी, ठीक है, जालिसुन जईदुन जालिसुन अलल कुर्सी, अब वो कहते हैं जायद बैठा है कुर्सी पर। अब इसमें हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब हम जो जार मजरूर होगा ना असल खबर की मौजूदगी में, उसको हम मुतल्लिक खबर कहते हैं, ठीक है। ये मैं पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ। असल खबर जब मौजूद होती है तो हम उसको मुतल्लिक खबर कहते हैं। अगर जब ठीक असल खबर नहीं होती तो फिर हम उसको कायम मुकाम खबर कहते हैं, उसी जार मजरूर को, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। दुआओं की दरख्वास्त है आपसे बस। जी, अल्लाह ताला आपके बच्चे को शिफा अता फरमाए, जरूर इंशाल्लाह सब जो है वो दुआ करेंगे आपके बेटे के लिए। आमीन आमीन। असाजा ये नंबर 3 प्लीज दोबारा बता दें क्योंकि मैं भी इसी में समझ नहीं आ रहा कि अंतुमुल फुकरा हम मुआरफा मुब्तदा ही लें और इलल्ला जो है वो हम मुतालिक खबर ही क्यों ना लें, हम अल फुकरा को क्यों उसको खबर मतलब उसको वो कर दिया खबर। ये देखें, तुम सब, यानी कि तुम सब मुजक्कर के बारे में खबर दी जा रही है कि वो मोहताज हैं, अल फुकराए मोहताज हैं, ठीक है, इलल्लाही अल्लाह की। अब ये मुतल्लिक खबर आ गया, ठीक है। ये हमारे खबर के इस खबर के मुतल्लिक हमें मजीद बता रहे हैं कि फकीर किसके हैं, किसके मोहताज हैं, इलल्लाही अल्लाह के। जो मुतल्लिक खबर क्या होती है, वो हमें असल खबर के मुतालिक और ज्यादा मालूमात फराहम करती है, ठीक है। इसलिए उसको मुतल्लिक खबर कहते हैं असल खबर की मौजूदगी में। मुतालिक खबर। इसलिए बस आप लोग ये देख लें, यहाँ पे जो जमीर है और जमीर के बाद जो है ना ये इसम जो है नकरा की बजाय मार्फा आया हुआ है, लेकिन हमारे पास मैंने आपको कहा था कुरानी पाक में आपको बेशुमार एग्जांपल्स मिलेंगी कि जहाँ पे मुब्तदा भी मार्फा है और खबर भी मार्फा है, ठीक है। देखिए एक्सेप्शनल जो होते हैं उसमें आएगी कैटेगरी, एक्सेप्शनल में आएगा। हाँ, वो ही 1% कैटेगरी में वहां पे हमारे पास आ जाता है, ठीक है ये। मैम आप नेक्स्ट अभी बताऊं? कब तक क्लास, हाँ नहीं, सॉरी बस मैम, लास्ट 2 सेंटेंसेस रह गए हैं हमारे पास, हम क्लोज करने लगे हैं, ठीक है क्लास। मैम हम जा सकते हैं, हमारी ना अपॉइंटमेंट थी जी आज डॉक्टर के पास जी जी, 10 बिल्कुल बजे। आप जा सकते हैं जी, आप खाना चले खा, जाएं। ओके जैसे कि खैरन कसीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं। कौन इन्होंने नहीं मिस ये किया, बताऊं, ये जिन्होंने वाला वो आता है हमारे साथ। मुझे। जी, मिस ये आप करें मुझसे फिर। पूछने, बाकी तो मैंने बताया नहीं है, जी, आप मुझे आ बताएं। नहीं रहे थे। हाजा खल्कुल्लाही। जैसे पहला हाजा जो है इसमें इशारा है और ये मुब्तदा है, और आगे खल्कुल्लाह ये है मुरक्कब इजाफी, और हाँ, इसमें मतलब खलकू जो खलकू है ये मुजाफ और वो मुजाफ इलैहि अल्लाही, ये हालत जर में है। और क्या बताना है? हाँ, यहाँ पे आ गया हाजा खल्कुल्लाही, ये अल्लाह की मखलूक है, ठीक है। ये हमारे पास जी। मुब्तदा, हाजा मुब्तदा और खल्कुल्लाही, यहाँ पे हमारे पास मुरक्कब इजाफी आ गया, खबर एज अ खबर आ गया, ठीक है। हाँ, और मिस ये नीचे वाले में जो ये बिकुल्ली है, ये जार जी मजरूर कहलाएगा ना? जी, बिल्कुल बिकुल्ली जार मजरूर। आगे और ये कुल्ली जो वल है ना वो, वाव, इसमें जो वाव है क्या ये हम्म, कसम के लिए या और के लिए?
वाओ जो है ना, अगर कब ये कौन बताएगा इसमें, ये वाओ जो है ना, ये बड़ा आसान है, आपको अगर अब इस मैं ही टाइम नहीं आ बताऊं, रहा है मुझे लेकिन ऐसा कौन लग रहा है बताएगा। कि अगर कसम वाला होता है तो फिर ये जेर आ जाता है, अतफ यानी नहीं कि फिर सिस्टर, कसम हाँ वल्लाह। कसरा हो जाता जी, है फिर ना, ये वल्लाह ही आना मुझे था। ये याद है, फिर जी, वल्लाही, ठीक वाओ है, और कसमिया के अली। बाद जो होता है, ये और आतफ ये होगा ना। हाँ ये अतफ वाला है वाओ, ठीक है, ये वाओ अतफ वाला है। और ये बिकुल्ली, आगे आप बताएं, बिकुल्ली शैइन। बिकुल्ली, ये जार मजरूर है, ये भी बी के साथ कुल्ली है। और और कुल्ली शई क्या शैइन, है? कुल्ली शैइन, ये कुल्ली शैइन, अच्छा, यहाँ पे कुल्ली के तमाम बारे में बताया था सर ने भी। ये कुल्ली जो है ना, हमेशा अरबी में मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, कुल्ली मुजाफ हो गया, शैइन ये तो मुजाफ इलैही हो गया। मुजाफ इलैही हो गया, तो वैसी हालत जर में। और अलीम, अलीमुन, हाँ अलीमुन बताएं। ये पेचीदा तो नहीं कहलाएगा, पेचीदा होता तो ये भी हालत जर में होता। जी, यहाँ पे देखिए बिकुल्ली शैइन, यानी कि जो हरफ जारा है उसके साथ ये मरतबे इजाफी है, ये जार मजरूर बन गया, ठीक है, ये सेंटर में जार जी, मजरूर, ये यानी कि जार में जगह। जो कायम मुकाम खबर है या मुतल्लिक खबर है वो पहले आ गया है, ठीक है, वो पहले आ गई है। जी, अब अलीम देखें, अलीम को अब अलीम उन नकरा भी है और माना इसके हालत और रफ में खबर भी भी है। है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास वल्लाहु जो था हमारे पास मुब्तदा था, मुब्तदा, बिकुल्ली और ये शैइन जो था, खबर है। हाँ ये मुतल्लिक खबर हो गया बिकुल्ली शैइन, और अलीम जो है ना ये असल खबर है, ठीक है, यानी कि अल्लाह जानने वाला है बिकुल्ली शैइन, हर चीज का, ठीक है। ये कुरान पाक में आपको ये जी, उसलूब काफी बड़ा मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुरान पाक में आपको मुब्तदा मुअख्खर भी मिलेगा, खबर जो है मुकद्दम भी मिलेगी, और जो है इस तरह से अली जो अब मुतल्लिक खबर पहले भी आ सकता है और असल खबर बाद में भी आ सकती है, ठीक है, ये चीजें आप लोगों की पता होनी चाहिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है कंप्लीट हो गया है जुमला इस्मिया के। अब जो टॉपिक रह गया वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जुमला इस्मिया को खत्म करके फिर हम जुमला फेलिया की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबन नर व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। रहमतुल्लाह।